Sundar, can you hear me? Good morning, sir. Good morning, sir. Sundar, am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sundar, Yes, sir. Sundar sir is visible. Oh, yes, sir. Sundar. So, Yes, sir, you are आवाज visible. आ रही है? Okay. A very good morning and a very warm welcome to this 3-day training program on divisional account officers and divisional accountants. Friends, we are also joined by Shri Asutosh Trivedi, DAG of the Office of PAG AND1 Maharashtra, Mumbai. During the last few years, this training features regularly based on the CAG office instructions. This year, PAG AND1 Maharashtra has shown keen interest in the conduct of this training program for the benefit of all the DAOs and divisional accountants, and will be closely monitoring the sessions and the feedback. So all are requested to be very attentive and interactive with the faculty and make most of this training program. We have sessions on preparation of monthly accounts, discussions on accounting issues, working of BEAMS, budget estimation, allocation and monitoring system and its modules. Online work orders of Maha PWD site, e-measurement book, e-bill, discussion on contracts, etc. Besides the above technical issues, we also have one session on administrative issues relating to the DA cadre, and also 3 sessions on introduction to MS Office with more emphasis on MS Excel. Ms. Jayasri Chettiar, Senior AO, will be coordinating this training program with assistance of Sri Sundar Ramakrishnan and Sri Aditya Sakpal. In case you face any issue, please feel free to contact us. With these few words, I would like to inaugurate the training program and would like to ask Sri Asutosh to say a few words about the training program. Yeah, please, over to Asutosh. Thank you so much, sir. A very good morning, sir. Uh, Respected Director General, sir, and the faculty members and all the members of the DA cadre who present in this meeting. Sir, on behalf of Principal Accountant General, ma'am, I would like to thank Director General, sir, for agreeing to conduct this training on such a short notice and on our request. We are very thankful to you, sir. Sir, and also I would like to thank the team of the RTI to design this training on the various administrative and technical topics. I have seen that many of the topics are being covered. As our DA cadre, they had to deal with the state government on regular basis, from preparation of monthly accounts, from timely submission of accounts, and also other administrative matters. And apart from matters, they are also involved in the internal checks, to which they are also responsible for ensuring the checks in the system. The training, sir, as DG sir has briefed, so the training covers many administrative issues and also from the technical issues, and also the issues regarding the MS Office, MS Excel. They are also they will be very helpful to DA cadre, as the state government has very advanced on the technical side, so they have to also upgrade their skills on regular levels. Once again, I hope this 3-day training will be very helpful to the DA cadre. And again, I would like to thank DG sir for conducting this training. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for the kind words. I think we can just start the sessions now. The first 2 sessions would be on preparation of monthly accounts of the state, reconciliation of accounts online, discussion on accounting issues relating to adjustment of WCT, debit memo establishment and TNP charges.
For these sessions, we have with us Shri Prashant Kumar. Sir is DAO Group 1 in the Public Works Division, Gadchiroli. Sir has over 20 years of experience of PWD accounts. And as DA as well as DAO, and especially in the online systems of accounts, EMB, AMS, etc. So I'm sure that with this rich experience and also coupled with his experience to take lectures in both RTA Nagpur and RTA Mumbai, I'm sure that you'll all gain a lot from this training program in this session. Thank you so much, sir, for joining us, and I would request you to kindly start the session. Thank you, Prashant sir, for joining as per our request. Thank you so much, sir. Hello. Good morning, everybody. अंदर को एक मिनट के लिए बुलाया. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Thank you very much for the introduction, and I thank everyone for everything they have said me. Shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. Is my camera is visible? My camera is on Yes, sir. You are visible. उसका वॉइस नहीं आ रहा है उसमें. and audible also. अच्छा, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, कोई और. Yes, sir. You're audible, sir. You're audible. Yes, sir. Yes, sir. You are. उस साइड से शायद कनेक्शन निकाल दिया. Then request all participants to please mute your mic so that there will not be any hindrance during the topic, during the discussion. Okay, thank you. Now, as they said about the topic today's topic is preparation of monthly account of state, online reconciliation, and other discussion on WCT, debit memo, establishment TNP charges, etc. With considering that I am audible to all, I am starting this session. I think we all participants are already working in the divisions. Is it anyone can unmute mic and say this, answer this? All are working in the divisions and they all well aware about the preparation of monthly account to some extent. Yes, sir. Yes, sir. We all are working. Yes, yes. Then considering this that you have already gone through the monthly account, I am starting this session. Very first thing, is English is okay or it's switched up to English or Hindi both? Yes, sir. We can keep it bilingual, sir. A mix of Hindi and English both. Okay. Very first thing that I want to introduce here, why we prepare monthly account of a division? Can anyone answer why we prepare monthly account of a division? I want this topic to be more discussion and interactive rather than the lecture and student type. Anyone, any idea of why we prepare monthly account of division? To equate receipt and expenditure. Yes. And to show how much expenditure has been done in the division and how much we are doing expenditure per head, and to tally the account, the receipt and the expenditure. Okay, very good. Anyone else? Financial position of the division. Yes. Next. Very good. Next. Anyone all? Okay. Very good. We are compiling the receipts and expenditure of the division in our monthly account. Basic thing is that we are compiling our receipts and expenditure of the division in form of monthly account. All the divisions in Maharashtra do the same thing of irrigation, PWD, where doing accountants posting, and other divisions also compile the same account, and they compiled account sent to the AG office, correct? And
AG office compiles those accounts to prepare the monthly account of the state government. Means we are feeding the input for the preparation of state government account that is submitted by the AG office to the state government through our small role. Okay? Means monthly account is the most important part and duty we are assigned with. Okay? So first of all, the main thing is that monthly account is prepared for the compilation of the monthly account of the state government, starting with your own division accounts. Okay? Next is why there is a reconciliation. Yes, please be part of this. What is the role of reconciliation of monthly account or expenditure receipts? You can unmute your mic. Sir, reconciliation is actually due to equilibrate the things. The check remitted and the check does not drawn और check कभी कैश नहीं होता है या बाउंस हो जाता है, तो उसको इक्विलिब्रेट करने के लिए दोनों आई मीन गवर्नमेंट के पास जो अपना एक जो रिकॉर्ड है और अपने डिवीजन के अकाउंट है वो दोनों टैली होने चाहिए. रिकंसिलेशन इस चीज के लिए करते हैं. हाँ, गवर्नमेंट एजी ऑफिस का अकाउंट हमारा अकाउंट टैली होना चाहिए, इसलिए हम रिकंसिलेशन करते हैं. तो जब हम अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट सबमिट कर रहे हैं एजी ऑफिस को और हमारा फिगर वहां इनकॉर्पोरेट हो रहा है, देन वाई रिकंसिलेशन. हर एक मंथ हम अकाउंट सबमिट कर रहे हैं ना, वी आर सबमिटिंग द अकाउंट मंथली. Even then there is possibility of any difference for reconciliation. Is anyone suggest any case regarding that? Yes, sir. Sorry to interrupt. Sir, you are sharing some presentation, na? Not at present, not sharing any presentation. Okay, fine. On this topic, I don't think there is any need for sharing presentation. Okay, there is a presentation regarding the user manual of MS of accounts that I will share. That everyone has the access of these things, but I will share. Okay. But this topic mostly relates with the discussion on major part. Okay. Okay, sir. Fine. I don't think any DO, DA want any presentation on monthly account. If anyone have anything, I will do it that. But I don't think on this topic there is need of any representation. We all very much aware about monthly account preparation, etc. I am just going to discuss those things which are quite important nowadays. Maybe you not have been going through those things. Okay. Fine. Reconciliation क्या है कि monthly account हम भेज रहे हैं हर महीने. We are sending monthly account every month. और nowadays it's also online. But even then we need reconciliation. सिस्टम इज दैट मेनी टाइम्स, जैसे आपको कभी एजी से मैं सबमिट किया तो आपको फोन आता है कि भाई ये हेड का गलत है, दूसरा हेड सीआरसी कोड डालना है, यू हैव टू गो डिफरेंट सीआरसी. बहुत बार हमारे बजट बुक में सीआरसी अवेलेबल नहीं रहता है, एजी ऑफिस में रहता है, वो डिफरेंट रहता है. बहुत बार कुछ फिगर्स एडजस्ट नहीं होते वर्क चार्ज के. तो ये प्रॉपर मंथली अकाउंट सबमिट करने के बाद भी देयर मे बी सम डिफरेंसेस इन आवर अकाउंट एंड एजी ऑफिस अकाउंट, एंड फॉर दोज थिंग्स रिकंसिलिएशन इज मस्ट. ठीक है कि इवन आफ्टर हाँ, तो nowadays the system of reconciliation also online बेस पे हो गया है अभी, तो that is also a benefit to us. Most of the divisions do not have any difference nowadays. Very few have some problems regarding new heads or new interaction, new transactions, maybe that. ठीक है. Then this is the basic of monthly account. I must summarize आपकी. We are preparing, हम लोग monthly account prepare कर रहे हैं हर division का receipt expenditure complete. We are submitting to the AG office. AG office compile all our accounts, irrigation, PW, other divisions also, and submit to the state government. This is the basics of monthly account. We are preparing for that. And the same thing reconciliation, मैंने उसका बराबर है, गलत सही नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. अब सबसे पहले मंथली अकाउंट में व्हाट इज द रोल ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट. हाँ, चलिए डिस्कशन स्टार्ट. बोलिए, सभी लोग काम कर रहे हैं डिवीजन में. तो चेक हाँ, यस, हाँ. Role of divisional accountant is that he has to check whether the figure given in the account are accurate or not. The main thing is that कि जो हेड में जो पैसा दिखाया जा रहा है एक्चुअली वो एक्सपेंडिचर हुआ भी है या नहीं हुआ है, और जो जिस हेड का पैसा है वो उसी हेड में जाना चाहिए. And all the calculations are up to date.
कितना है, आई मीन अकाउंटिंग मीन दैट मीन्स होल द कैलकुलेशंस, होल द एड, कितना पैसा आया है कितना गया है, सब टोटल एक्यूरेट होना चाहिए उसमें। ये काम डिविजनल अकाउंटेंट का है चेक करना। ठीक है, फर्स्ट आई रिक्वेस्ट एटलीस्ट सम ऑफ मेंबर टू प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरा सो दैट आई थॉट कि मैं डिस्कशन विद समवन नॉट विद द कंप्यूटर। ठीक है, हाँ, हेड ऑफ अकाउंट अगर आप टैली करना है। नेक्स्ट एनीवन एल्स? और कुछ रोल ऑफ डीए? Compilation of accounts, sir. Yes, yes, that is the main. Where is लिखें compilation of accounts? Yes. Anyone else? Anything? Maintenance of deposit register. Those are the different. Regarding whole monthly account, your three basic duties are to advise the executive engineer, compilation accounts, and preparation of monthly account. So compilation of account is the main duty. Conclude the main duty of divisional accountant. आपको monthly account compile करके AG को submit करना है। Compilation word use करने का meaning is that कि आपके पास अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट तो है डिवीजन का, बिसाइड्स कि आपके साथ सब डिविजन्स होते हैं, उसके भी अकाउंट होंगे। तो यू हैव टू कंपाइल ऑल दोज अकाउंट्स इनटू अ सिंगल फॉर्मेट और उसको आपको फिर एजी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट इज द वन ऑफ द मेजर ड्यूटी ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। आई होप एवरीवन इसको काम कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक कंसिडरिंग स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, PWD, स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट। बट इफ एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग इरिगेशन और अदर डिवीजन जो भी है, तो he may ask those questions. I will try to answer those questions also. ठीक है, but basically मेरा जो ये discussion है that is basically on state government account. ठीक है, since there are some differences between BIDC, irrigation divisions, corporation divisions, therefore I am restricting to the compilation of and discussion on monthly account of state government, but we may merge of these things. ठीक है, चलिए next. Compilation करने के लिए जो सब डिविजन्स हैं वो अकाउंट कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? यस, एवरीवन, सभी लोग अकाउंट तो सबमिट कर रहे हैं जी को, सभी ने कंपाइल किया होगा। मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, Yes, sir. कुछ लोग प्लीज माइक ऑन, कैमरा ऑन कर लें, हमको मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा। मे भी आप सब लोग मुझे जानते भी होंगे, मैं भी कुछ को जानता हूं उसमें से। यस पहले भी हम लोग मिले हैं, आई होप, ट्रेनिंग में। Yes, sir. हम तो अभी भी मिले सर नवंबर में आपसे। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो सब डिवीजन का भी सर ऐसे ही बनता है जैसे डिवीजन का बनता है, वो थोड़ा स्मॉल स्केल पे होता है। अभी सब डिविजन्स को धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनेंशियल पावर्स चेंज हो रहे हैं, उसको फाइनेंशियल पावर्स कम मिलते जा रहे हैं, तो वो रोल कम होता जा रहा है उनका। फिर भी जो सब डिवीजन में जो अकाउंट्स हैं, सब डिवीजन में जो खर्चे हैं, रिसीट एक्सपेंडिचर है, वो उसका वो कंपाइल करके हमको वो भेज देते हैं। उनका क्लोजिंग 20 to 20 रहता है, 21 to 20, और फिर वो हमको 31 के पहले भेज देते हैं और हम उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, यस सर। सब डिवीजन के अकाउंट को कंपाइल करने के लिए, अच्छा अब हम चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिपरेशन मंथली अकाउंट। हाँ, मंथली अकाउंट जब प्रिपेयर करने बैठते हैं मंथ के एंड में, सबसे पहले क्या करते हैं? अभी तो ऑनलाइन हो गया, मैं पहले मैनुअल सिस्टम डिस्कस करूंगा, फिर ऑनलाइन में जाऊंगा। ठीक है, एक थोड़ा देर तक। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं? सर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, वेरी गुड। ठीक है, Then all the vouchers and all the हाँ, expenditures. just I want that only, vouchers। सबसे फर्स्ट काम करते हैं वाउचर्स पोस्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, Yes. वाउचर्स पोस्टिंग करते हैं, क्लियर है? अगर ऑनलाइन रहा नहीं तो मैनुअल रहा तो वाउचर को हम लोग एडिट लेते हैं। तो वाउचर्स में क्या क्या चीज देखना सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वाउचर प्रॉपर्ली पास्ड है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उसके थ्रू पास्ड है कि नहीं। बहुत बार होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रस में रहते बिल निकल जाता, पास नहीं होता, दैट इज द वेरी बैड थिंग। प्लीज इंश्योर दैट कि वाउचर्स सारे पास्ड होने चाहिए, दैट इज साइंड होनी चाहिए, मतलब पास होता ही वाउचर है बट साइंड होनी चाहिए। अभी ये अभी का नया ट्रेंड बता रहा हूं मैं, इसलिए और वाउचर की कोई लिमिट है क्या कि कितने तक के वाउचर अपने को देखने चाहिए?
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ड्राइंग पावर का लिमिट अभी नहीं है। प्रीवियसली इट वाज समथिंग लाइक 50 करोड़ वगैरह इटीसी, बट अभी कोई लिमिट नहीं है उसको। नहीं नहीं, एक्चुअली अपने साइन भी तो बाउचर पे होते हैं ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने तक अपने साइन सभी वाउचर होने चाहिए। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सभी पे को डिविजनल अकाउंट के थ्रू रूट होना चाहिए, ऑल ट्रांजैक्शंस विदाउट सर लिमिट। बिल्कुल, लेकिन सर क्या है, कभी कभी ये डिवीजन में अब ये लोग कभी पेन पेंसिल लेके आते हैं ना, उसका भी बाउचर लगा देते हैं। अभी हम 10-10 रुपए के कितने बाउचर चेक करेंगे, आप ये बताइए। ठीक है, उसका ऐसा है कि एक होता है फॉर्म 78 जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारा जो थ्रो ट्रेज सर्कल जाता है, वो उसका खर्चा डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू रूट करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है मोस्टली, क्योंकि वो ऑफिस एक्सपेंसेस है और एस्टेब्लिशमेंट खर्चा है, और एस्टेब्लिशमेंट को अभी हमारे वर्क सेक्शन से अलग किया हुआ है। ठीक है, बट अगर इफ एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट तो आप उसको ये देख सकते हैं, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली। ठीक है, वो ट्रेजरी के थ्रू जाता है। चलिए, वॉचर्स में पहले हमको सबसे पहले देखना है वो प्रॉपर वॉचर माने बिल पास्ड है कि नहीं, बराबर वॉचर्स बराबर है कि नहीं। सर सॉरी सर, सॉरी सर, 78 का दोबारा बताना। 78 का क्या बता रहे थे सर आप? क्योंकि एक डिवीजन में है सर क्वालिटी कंट्रोल, उधर कुछ भी एक्सपेंस होता है सर, किसी का भी हेड का हो, ऑफिस का हो, तो 78 में शो करती है सर सारा, और उस पे हमारा सिग्नेचर लेती है। 78 जो है फॉर्म है ना, वो अभी डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू रूट होने की जरूरत नहीं है। 78 मतलब ऑफिस कंटीजेंसी, एक अलग हेड है 2059 में, हालांकि बीडीएस में ही आ रहा है अभी, बट ये 2059 का अलग है, जिसकी पासिंग जो होता है वो ट्रेजरी के थ्रू होता है। टीडीओ जो डिप्टी इंजीनियर है वो उस वॉचर्स को पास करके उसका बीडीएस ड्रॉ करके ट्रेजरी भेजता है, ट्रेजरी उसको अप्रूव करता है, उसके बाद उसका ये होता है, अकाउंटिंग होता है उसका, और उसका पेटी कैश बुक जो उसके पास रखा हुआ है फर्स्ट क्लास के पास, उसमें एंट्री होती है, हमारे वर्क कैश में एंट्री नहीं होती है। ठीक है, उसका कंपाइलेशन फॉर्म 78 में करके ये लोग भेजते हैं, थ्रो सर्कल एजी को आता है, वो रिकंसिलिएशन का थ्रो सर्कल होता है। लेकिन सर उस पे वो मेरे सिग्नेचर्स भी लेती है, डीए के सिग्नेचर्स भी लेती है, तो उस पे करना। उसमें दो कंसेप्ट है, एक रिगार्डिंग वर्क्स एक्सपेंडिचर यू कैन ये कि भाई नहीं मेरी जरूरत नहीं है साइन की। ठीक है, अगर वर्क एक्सपेंडिचर है, बट मैनुअल में एक जगह लिखा हुआ है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो आपके थ्रू रूट होना चाहिए। तो जहां खर्च कम है और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं, ज्यादा उसमें इशू नहीं, चूंकि वो ट्रेजरी के थ्रू पास होता है। ठीक है, बट योर डिविजनल अकाउंटेंट्स रोल इज लिमिटेड ऑन दिस थिंग्स, ओनली थ्रू द वाउचर सिर्फ देखना है बस, आपको बराबर है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ आपका रोल नहीं उसमें। जैसे उसका अगर 10,000 के ऊपर है या 5,000 के ऊपर है तो उसका कोटेशन वगैरह है कि नहीं, ये सब बस। बाकी छोटे वाउचर्स में ज्यादा कुछ इशू नहीं है, वो डायरेक्ट खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बट इन जनरल दीज एक्सपेंडिचर्स, मोस्ट ऑफ द डिविजन्स एक्सपेंडिचर हमारे को रूट नहीं होता है डिविजनल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वॉचर्स में पहला है कि वो प्रॉपर्ली पास्ड है कि नहीं। दूसरा है सबसे इंपोर्टेंट जो आपने बोला, हेड ऑफ अकाउंट, उसका हेड ऑफ अकाउंट बराबर उसमें मेंशन किया हुआ है कि नहीं। दिस इज द पॉइंट वेयर आप मिसक्लासिफिकेशन को नोटिस में ला सकते हैं। अभी तक मैं ऑफलाइन बात कर रहा हूं, इसलिए ऑनलाइन में पहले हो जाएगा, मगर ऑफलाइन में अभी अगर आपके बिना रूट किए हुए कोई बिल पास हो जाए तो यही एक पॉइंट है जहां आप बता सकते हैं कि ये मिसक्लासिफिकेशन है। क्लियर? ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट कैसे कैसे चेक करते हैं आप लोग, क्या करेंगे बताइए कोई? सर पेट्रोल डीजल का होता है, वर्क्स उसका होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस का होता है, कंप्यूटर का होता है, वो तो उनके हेड पे होते ही हैं सर, और टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का है वो भी उनके भी हेड होते हैं सर। ये सारे हेड जो बताए आपने वो आपका रेगुलर हेड है, 2701 होगा या 2702 होगा, और अगर पीडब्ल्यूडी में तो 2059 होगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरे हेड्स के खर्चे जैसे 3054, 5054 या 4701 का आप कैसे डिसाइड करेंगे हेड बराबर है उस पे वॉचर्स पे? वॉचर पे जो हेड है वो बराबर हेड है, कैसे डिसाइड होगा? वो देखेंगे ना सर, खर्चा किस चीज पे कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है कि नहीं है। खर्च मतलब आप बोल रहे हैं बीडीएस बराबर निकाला है कि नहीं उस पे? हाँ, वो चेक करेंगे ना कि उस पे कौन से पे एक्चुअली वो वर्क जिस पर कर रहा है उसी पे आना चाहिए या नहीं, वो देखेंगे हम कि अगर बीडीएस से गलत निकाला हो तो? नेक्स्ट बोलिए। यस, चलिए, आपके पास जो जिस समय वॉचर आता है उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहता है पहले बता देता हूँ।
आपके पास वॉचर फाइल में बिल की कॉपी रहेगी, जो पास वॉचर मतलब वॉचर बोलेंगे उसको भी, कंप्लीशन रिपोर्ट रहेगा रहा तो, बाकी अगर कुछ रॉयल्टी वायल्टी रहा तो वो सब रहेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट आ रही बिल रहा तो मे बी इंश्योरेंस कॉपी वगैरह हो सकता है। बट इसके साथ जब आपको बिल पास करने आता है, जब बिल पासिंग के लिए आपके पास आता है, उस समय आपको ये देखना है कि उसका जो हेड ऑफ अकाउंट है वो बराबर है कि नहीं। तो मैं फिर पूछ रहा हूँ, हेड ऑफ अकाउंट कहाँ चेक करेंगे? आपको हेड अकाउंट कैसे मालूम चलेगा उस हेड का खर्चा है कि नहीं? हेड ऑफ अकाउंट डिसाइड करने वर्क ऑर्डर में रहता है ना, वर्क ऑर्डर में मेंशन रहता है सर। ठीक है, वेरी गुड, वर्क ऑर्डर में रहता है। और कोई वर्क ऑर्डर में हेड कहाँ से आता है? मैं इसका बेसिक जानना चाह रहा हूँ। वर्क मंजूर होता है उस टाइम सर, अपन ऑनलाइन में भी वाउचर से पहले उसका वर्क डिटेल डालते हैं, तो वहाँ भी बजट हेड उसका हेड डालना पड़ता है। हाँ ठीक है, अदरवाइज वो वाउचर कंसीडर ही नहीं करेगा वो, अपन मंथली अकाउंट बनाएंगे तो। थोड़ा सा भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। सबसे पहले वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आता है किसी भी बड़े काम का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में आपके मेजर हेड्स लिखे रहते हैं, वही हेड आपका वाउचर तक फिगर होना चाहिए। प्रशासकीय मान्यता जो भी रहेगा उसमें आपके हेड, डिटेल हेड, सब हेड के स्कीम सभी कुछ रहता है क्लियर। तो जो मेजर वर्क्स है, कैपिटल वर्क्स मोस्टली, या फिर सीआरएफ और नाबार्ड वगैरह 354 के पका है, उन सबों में आपका ये रहेगा, हेड लिखा रहता है बराबर विथ डिटेल क्लासिफिकेशन सीआरसी कोड, ठीक है। तो आपको ये श्योर करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में हेड में जो ये लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, वही हेड आपका टेक्निकल सैंक्शन में आना चाहिए, वही हेड आपका वर्क ऑर्डर में आना चाहिए, और वही हेड फाइनली वाउचर में आना चाहिए। एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग कैपिटल वर्क्स जिसका प्रशासकीय मानता है? नो सर, नो, सही, करेक्ट, ठीक है। तो चैनल कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, लेटर टेक्निकल सैंक्शन, लेटर वर्क ऑर्डर, बाद में फिर आपका ये वाउचर्स वगैरह जो भी है, बीडीएस सिस्टम जो भी है। तो अभी क्या, पहले सिस्टम वर्क ऑर्डर में ऑनलाइन वाले कल मैं बताऊंगा, इस डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, वर्क ऑर्डर के बारे में कैसे काम करता है। बट अभी वर्क ऑर्डर में हेड लिख के आ रहा है, पहले नहीं आता था वो, ठीक है। चलिए, अभी अब मान लिया कि कोई काम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में नहीं है, छोटे काम है, 2 लाख 10 लाख 20 लाख काम है, छोटे मैंने 259 354 छोटे काम है, पीआर काम है, तो फिर कैसे होगा उसका फिर हेड? हाँ, अभी कोई भी काम, हाँ अभी जैसे आपने को मैंने बताया कि जो कैपिटल हेड काम है, बड़े काम है, उसमें सबका प्रशासकीय मानता रहता है, उसमें आप काम करते हैं, उससे हेड लिखा रहता है, उसमें से आपको टीएस में आता है, टीएस वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर से आप वाउचर वेरीफाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी जो काम बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, जैसे कुछ मेंटेनेंस काम हो गए, छोटे छोटे काम है जिसका प्रशासकीय मानता नहीं रहता, तो उसको कैसे होता है उसका सिस्टम? आप सभी डिवीजन में काम कर रहे हैं, यस पर सूची में सेक्शन होते हैं ना, उसमें तो लिखा रहता है सब, उसमें जॉब नंबर सैंक्शन होता है सबों में, या फिर उस काम का अप्रूवल आता है आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट और सीएससी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हायरार्की में, उनके पास से जॉब मंजूर होता है और उसी को जॉब नंबर बोलते हैं वहां पे, या वर्क अप्रूव होगा। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टाइप से मंजूर होते हैं। जैसे टीपीडीसी काम रहेंगे तो वो कमिटी है कलेक्टर के अंडर, वो मंजूर करती है उसको। आपके 3054 वाले हैं तो उसका अलग हायरार्की है, सी और गवर्नमेंट 2 तरह का है, उसमें मंजूरी आती है, मगर सबों का जॉब नंबर रहेगा, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मंजूरी का अप्रूवल का है उसी लेटर में उसका हेड मेंशन रहता है, ठीक है। वही हेड आना चाहिए आपको टेक्निकल सैंक्शन में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार टेक्निकल सैंक्शन बोल रहा हूँ, टीएस बोल रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे टीएस तो आता ही नहीं है। वर्क ऑर्डर करने से पहले टीएस कॉपी जरूर मंगाइए, क्या देखिए, बार बार टीएस पे इसलिए स्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि टीएस में ही हेड रहता है, हेड का अथॉरिटी उनके पास ही है, ठीक है। आपको वर्क अप्रूवल किसी भी चैनल से आए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से आए, जॉब नंबर से आए, या डीपीडीसी से आए, या नाबार्ड से आए, सीआरएफ से आए, कैसे भी आएगा, आपका टेक्निकल सैंक्शन में वही हेड रहना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली टीएस तक हेड में चेंज नहीं होता है, ठीक है। टीएस के बाद जो वर्क ऑर्डर होता है, और वर्क ऑर्डर के बाद जो बीडीएस निकालते हैं, वहां पे इशू जाते हैं मिसक्लासिफिकेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट इशू है हमारे डीए कैडर के लिए, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन में प्रॉपर हेड लिखा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा रहता है, सही रहता है, समटाइम्स में भी कुछ
इनऑरेंटली और फिर गलती हो सकती है, वो गलत हो, आप चेक कर सकते हैं उसको, बट वर्क ऑर्डर के टाइम पे आपको हेड वेरीफाई करना जरूरी है। एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग दिस अप टू दिस वर्क ऑर्डर हेड अकाउंट? सर कई बार ये जो क्लर्क्स रहते हैं सर, ये कहते हैं कि इस हेड पे हमारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इस काम के लिए हम वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ये भी तो ऑफिस के लिए खर्चा है, ये भी ऑफिस का खर्चा है, तो वहाँ से उसको निकाल सकते हैं। तो इस चीज को कैसे सर लिमिट करें, कैसे रोक सकते हैं इसको? रोकने का काम डिविजनल अकाउंटेंट का नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट इज नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू स्टॉप एनी पेमेंट और स्टॉप एनी वर्क ऑफ गवर्नमेंट। आपकी अथॉरिटी सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोटिस में लाने की है। क्लियर? आप यू आर नॉट द अथॉरिटी, याद रखो, ये हमेशा याद रखिए इसको, ठीक है? अगर आपको अगर कोई कह रहा है कि भाई एक हेड का पैसा दूसरे हेड से कैसे निकालो, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल एक ऑफिस नोट डालिए, उसमें अगर चाहे तो ऑब्जेक्शन बुक अपडेट कर सकते हैं, उसमें ऑर्डर लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कि भैया ये गलत हो रहा है आपका, आप देखिए कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं करिए, ठीक है? मेरे हिसाब से गलत है, मे बी ऑब्जेक्टेड बाय ऑडिट, मे बी इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी कीजिए, मुझे ऑर्डर दे दीजिए करने के लिए, बस। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑर्डर इज सफिशिएंट फॉर यू। इसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेजर इशू है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, यू में पॉइंट आउट इन ऑब्जेक्शन बुक और एंड दोनों, आप उसको ऑडिट को और एजी अकाउंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियली या थ्रू एग्जीक्यूटिव, दोनों, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू स्टॉप एनी पेमेंट, यू आर एडवाइजर, ठीक है? अथॉरिटी इज लाइज विद द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, अगर आप नोट डालेंगे, ऑब्जेक्शन लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक काम रुक जाएगा और आपके नाम पे रुकेगा, बट दिस इज क्लियर, अपने माइंड में रखिए कि आपको ऑफिस नोट डालना है, उसको एक्सप्रेस ऑर्डर्स लेने हैं उस पे, और अगर आपको लगता है कि मेजर रेगुलेटरी है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यू शुड रिपोर्ट दिस डायरेक्टली टू द ऑडिट। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन है कि कोई एनी कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है तुरंत पूछे अभी। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई मैडम या सर पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो भी इसी टाइप का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ये एजी ऑफिस में शायद बैंकर सर या मैडम लेंगी क्लास, तो ठीक है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, यस सर। मेरे इस स्टेटमेंट पे किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, प्लीज आस्क, बी फ्री टू आस्क। नहीं सर, करेक्ट, आ गया है समझ। ठीक है, थैंक यू। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग अपने कैमरे ऑन रखे, तो मुझे लगेगा मैं देयर आर सम पर्संस देयर, मतलब मुझे कंप्यूटर स्क्रीन दिखता है सिर्फ ओनली, ठीक है? हाँ, चलिए, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे? हम हेड ऑफ अकाउंट में थे, जॉब नंबर इसके लिए वाउचर्स में। वाउचर्स में हेड ऑफ अकाउंट हम कहाँ से पहुंचे? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, वर्क ऑर्डर, तब बीडीएस, तब वाउचर, ठीक है? ये चैनल याद रखिए आप हमेशा। आपको हेड ऑफ अकाउंट वेरीफाई करना है ऑलवेज, क्योंकि ये आपकी प्राइम ड्यूटी है, खर्चा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप उसको ऑर्डर लीजिए, ठीक है? हाँ, इसमें सिस्टम अलग टाइप हो सकते हैं, बहुत तरह के, जहां से आपको मिलते हैं वो सब। चलिए, वाउचर्स में हेड ऑफ अकाउंट के बारे में इतना डिस्कशन फिलहाल काफी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ आगे बताएंगे। और क्या देखते हैं वाउचर में, बताइए आप? वाउचर्स में और कोई, एक्चुअली हम लोग वाउचर चेक नहीं करते, हम लोग बिल चेक करते हैं वाउचर होने से पहले। तो अभी आप, अगर मैं वाउचर बोल रहा हूं तो आप उसको बिल भी समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि जो मैनुअल में वर्ड यूज किया हुआ है डिविजनल अकाउंटेंट के रोल के बारे में, ऑलवेज यूजेस द वर्ड वाउचर, नॉट द बिल्स। I hope you got my statement. But there is a provision in manual कि every financial transaction should be routed through divisional accountant, therefore bill भी आपको रूट होता है, ठीक है? तो मैं इसलिए बार बार पहले वाउचर से शुरू कर रहा हूँ, सिंस वाउचर इज योर मेन रिस्पांसिबिलिटी। आप उस काम के बाद भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। आपके वाउचर प्रिपरेशन के समय आपको दिखा कि नहीं भाई 30 रुपए का खर्चा भाई 20/60 से निकाला हुआ है, आप इमीडिएटली ऑब्जेक्शन लिखिए, रिपोर्ट कर दीजिए, या उसको ऑर्डर ले लीजिए, ठीक है? इवन इफ कि नहीं भाई मैं बिल पास हो गया तो अब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट प्रिपरेशन के समय, कैश बुक के समय आप उसकी एंट्री और उसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं क्लियरली, ठीक है? ओके सर। अगर आप लोगों ने मैनुअल और बाकी चीजें देखी होंगी तो आपको ये ध्यान होगा कि एवरीवेयर इट इज रिटन वाउचर, ठीक है? चलिए, हाँ, नेक्स्ट वाउचर। हाँ, यस सर, अगर मान लीजिए गलती से कोई बिल या मतलब वाउचर डीएओ से पास हो जाता है और फिर वो एग्जीक्यूटिव से भी पास हो जाता है, सपोज इनसफिशिएंट नॉलेज है या कम जानता है कोई, वो पास हो जाता है प्रॉपर ए टू जेड, मतलब कंप्लीट, बट उस किसी पर भी पेमेंट नहीं हुई है,
ठीक है। तो क्या हम उसको फिर से उसको दोबारा पासिंग करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, या अब चूंकि वो पास हो चुका है, एग्जीक्यूटिव ने भी कर दिया है, डीओ ने भी कर दिया है, तो या हम उसको एज इट इज आगे जाने दें? क्या करना चाहिए इस केस में? मैनुअल और कोड दोनों में क्लियर लिखा हुआ है, एमटीआर में लिखा हुआ है, अगर कोई भी गलती, मैं अभी गलती का टाइप नहीं पूछा हूं, पूछूंगा बाद में, एनी टाइप ऑफ गलती अगर होती है, मिस्टेक्स होता है, और अगर इट कैन बी रेक्टिफेबल, तो उसको इमीडिएट रेक्टिफाई करना चाहिए, इमीडिएट। जैसे अभी अब मैं आपसे पूछता हूं, जो आप गलती है वो किस तरह गलती है? मिसक्लासिफिकेशन है, एक्सेस पेमेंट है, या कुछ और छूट गया आइटम, या कुछ लेस पेमेंट है, तो आरए बिल है, फाइनल बिल है, इस तरह बहुत से केस हो सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं अभी कोई भी गलती है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको इमीडिएटली कैंसिल कीजिए, फ्रेश पेमेंट पास कीजिए, करेक्शन कीजिए उसको। कोई भी गलती जैसे नोटिस आई, इमीडिएटली करेक्शन करना है उसको। अगर वो करेक्टेबल नहीं है, फिर दूसरा प्रोसेस है। जैसे मैं आपका केस लेता हूं, एक मान लीजिए आपका बिल वो पास हो गया, ठीक है, बट उसका पेमेंट नहीं हुआ है, बीडीएस, अभी आप तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, मैनुअल कुछ रहा नहीं है, तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो बीडीएस लास्ट मोमेंट तक कैंसिल होता है। ओके, क्लियर? बीडीएस कैंसिल होता है, ठीक है, मैंने बहुत बार किया है। अभी लास्ट टाइम ही मैंने कम से कम 26-27 बीडीएस कैंसिल किए थे मार्च में भी, ठीक है, हेड का मिसक्लासिफिकेशन था। बीडीएस आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, आपके ऑथोरिटी में है वो, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है किस कारण से कैंसिल कर रहे हैं, मिसक्लासिफिकेशन, बिल नॉट पास्ड, नॉट प्रॉपर हेड, ऐसा कुछ तो भी है, तो 4-5 पॉइंट है उसमें, ठीक है। अगर पेमेंट हो गया है और गलती मिली है, तो उसका दूसरा प्रोसीजर है, ठीक है। अभी आपका बताइए, अभी आपका क्वेश्चन क्लियर, आंसर क्लियर है कि और कुछ बताना है इसमें? आपका टाइप गलती का टाइप? अच्छा सर, मान लीजिए पेमेंट हो गया है, उसके बाद कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे? पेमेंट करने के बाद आप गलती किस तरह की है वो बताइए। अब गलती जैसे मान लीजिए किसी को इंश्योरेंस का गलत पेमेंट चला गया हो। इंश्योरेंस का गलत, इंश्योरेंस का पेमेंट आप कहाँ करते हैं? नहीं नहीं, जैसे क्या रहता है कि शेड्यूल बी में टेंडर आइटम बना के इंश्योरेंस रखा गया, ठीक है, हाँ, यस, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी सर नेटवर्क चला गया था, अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही है, हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए शेड्यूल बी में कोई आइटम जैसे इंश्योरेंस का बनाया हुआ है, तो उसका प्रोविजन डालते हैं इंश्योरेंस में, शेड्यूल बी में, कि आपको पॉलिसी लेकर के आनी है, बट इन केस वो पॉलिसी नहीं लेके आता है, फिर भी उसको 1% से इंश्योरेंस पे हो जा रहा है, और वही रिकवर भी करे ले रहे हैं उधर से, तो ये तो मतलब गलत है ना, उसको इंश्योरेंस तो पे करना ही नहीं है जब वो पॉलिसी लेकर के नहीं आया। अभी हम एक हाथ से सामान दे रहे हैं और दूसरे से उसको ले रहे हैं, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो क्यों लाएगा इंश्योरेंस? अभी उसको देना ही नहीं था, लेकिन गलती से वो पे हो गया, अभी उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? अगर वो अभी आरए बिल है मान लिया अगर, तो उसको फाइनल बिल में माइनस कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर वो फाइनल बिल चला गया है और उसके बाद उसको पेमेंट नहीं है, तो उसके एसडी से रिकवर कर सकते हैं उसको। उसका एसडी भी नहीं है और उसको फिर भी रिकवर करना है, तो उससे आप ये, दिस इज नॉट अ केस ऑफ इंश्योरेंस, दिस इज अ केस ऑफ एक्सेस पेमेंट, ठीक है, क्लियर एक्सेस पेमेंट। आइटम इंश्योरेंस इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन आइटम। अब आइटम में हो गया तो वो आपका शेड्यूल बी का पार्ट हो गया। एनी पेमेंट जो उसमें एक्सेस हो रहा है वो एक्सेस पेमेंट है, कोई भी पेमेंट रहेगा तो एक्सेस होगा वो, ठीक है। एक्सेस पेमेंट को अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो पहला ऑप्शन नेक्स्ट आरए बिल में क्लियर कीजिए उसको। फाइनल बिल है, डिपॉजिट से रिकवर कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो उससे डीडी या चेक से, डीडी से मोस्टली, चेक से नहीं लेते हम लोग, डीडी से लेके उसको उस हेड में क्रेडिट कीजिए या फिर रेवेन्यू में डालिए उसको, ठीक है। ओके सर, अगर हाँ, सर yes. अगर बीडीएस हमारा कैंसिल हमने किया है तो सर उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है, कितने दिन में हम उसको दोबारा कर सकते हैं सर, क्या प्रोसीजर रहता है बीडीएस कैंसिल होने के बाद? बीडीएस कैंसिल करने के बाद आपको सर्कल को रिपोर्ट करना है कि कैंसिल हो गया है, आपका पैसा आपके हेड में वापस आ जाता है, ठीक है। में प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंसेस थे, पहले डिपॉजिट का अपने लेवल पे था और हेड का गवर्नमेंट पहुंचाता था लाने के लिए। अभी वो एसी के पास है, एसी वापस कर सकते हैं पैसे अभी, ठीक है। सब डिविजन्स के लिए वो है सर ये एप्लीकेबल, गवर्नमेंट के लिए भी और एमकेबीडीसी इनके लिए, सभी के लिए बीडीएस सिस्टम सभी के लिए सेम है।
ओके बीडीएस सर। सिस्टम तो सभी के सेम है, सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर में गवर्नमेंट सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम है और कॉर्पोरेशंस डिविजन्स के डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, यस सर। तो अभी एससी को सिर्फ रिपोर्ट करें? हाँ ऐसे को रिपोर्ट करेंगे, ऐसे उसको मालूम चल जाता है, उसका रिपोर्ट चला जाता है कि आपने कैंसिल किया है, फिर भी आप उसको मैनुअली रिपोर्ट कर दीजिए या मेल से रिपोर्ट कर दीजिए उसको। ओके सर। तो वो पैसे वापस आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग थे वॉचर्स में। वॉचर्स में दूसरा था, पहला हमने हेड ऑफ अकाउंट देख लिया, दूसरा आपने क्या बोला, एक्सेस पेमेंट या कुछ पेमेंट अमाउंट। तो नेक्स्ट आपको वॉचर्स में चेक करने हैं कि आपका अमाउंट बराबर है कि नहीं, जो बिल पास है उतना ही बीडीएस निकला है कि नहीं। ठीक है, क्लियर? सर एक चीज पूछनी थी। यस यस सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए मतलब बीडीएस में एसई के थ्रू पैसा आ रहा है, एक बार वो बीडीएस में पैसा दे सकता है, तो क्या फिर वो उस हेड से पैसा आई मीन उसको कैंसिल भी कर सकता है कि नहीं, मैं वापस आपसे विड्रॉल कर लूंगा, ऐसा भी कर सकता है क्या? विड्रॉल का ऑप्शन ऐसी हाँ यस दिया हुआ, उसको ऑप्शन दिया हुआ विड्रॉल। नहीं नहीं, ऐसी इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की एक बार वो देने के बाद उसको फिर से वो वापस ले सकता है तुरंत ही। यस यस, अभी इसमें बोले ना फाइनेंशियल पावर्स चेंज हुए हैं। इनिशियली ये पावर ओनली विद द राइज विद द गवर्नमेंट, पहले सिर्फ गवर्नमेंट वापस लेती थी पैसे, अभी वो धीरे धीरे चेंज हो गए। अभी ऑनलाइन सिस्टम में आपको पैसे दिए, आपके पैसे का लिमिटेशन है कि 10 दिन 5 दिन जो भी खर्च करना है आपको। सिंस नाउ डेज जो बड़े हेड पे पैसे पास वाउचर पे ही आ रहे हैं, वो जो आप वाउचर पास कर रहे हैं, तो अभी आपको उसको आप विड्रॉ कर सकते कभी भी हो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप उसको एक लेटर रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हमको पैसे खर्च करने में टाइम लगेंगे, कुछ इशू है, तो वो मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज वो विड्रॉ करने का अधिकार है उनको। फोर्स करते हैं सर कि जो है आपको मतलब इतना दिया गया है, इसको इतने दिन में खर्चा करो वरना हम वापस ले लेंगे। अब वो थोड़ा मतलब एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है कि आपको बस जल्दी जल्दी करके उसको करना है, अदरवाइज वो वापस ले लेंगे। तो इसके लिए मैं पूछ रहा था ये क्वेश्चन आपसे। ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड है, जनरली इस तरह का होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बीडीएस पे पैसा आया तो उसको खर्च करना है आपको। ठीक है, तो बीडीएस के जो पैसे मेंटेनेंस के पैसे हैं वो पैसे रहते हैं आपके पास, मोस्टली आप लैक ही रहता है, हमारे पास जितना डिमांड है उससे कम ही पैसे आते हैं मेंटेनेंस के। उसको रोकने का कोई मतलब नहीं क्यों रुका हुआ पैसा, दैट इज नॉट द इशू कि क्यों आप पैसे बीडीएस रोक के रखे हैं, समझ में नहीं आता वो। नेक्स्ट है कि आपको जो कैपिटल हेड्स के पैसे हैं, जो मेजर हेड के पैसे हैं, वो भी अभी आप जब बिल भेजते हैं कि भाई इतना मेरा बिल पास हो गया, उसके बाद ही पैसे आते हैं उधर से, ऐसे पैसे भेजते नहीं हो। तो जब ऑलरेडी आप उस पैसे को यूज कर चुके हैं, माने बिल पास कर चुके हैं, तो फिर पैसे रोकने का कोई मीनिंग नहीं दिखता है यहाँ पे। तो ये बाकी अदर इश्यूज होते हैं एजुकेटिव इंजीनियर और उसके वो उसकी वजह से हो सकता है वो, बट एज पर रूल कोई पैसा रोकने का या कुछ दिन वेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आपका नेट नहीं काम कर रहा है, कुछ फेल्योर है मेजर या कुछ छुट्टी पर है कोई, उस केस में आप रिपोर्ट कर दीजिए, आपका पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते वो। ठीक है सर, बिल करने के लिए सर हम डीएस के पास कितना टाइम होता है सर, कि एक बिल कर फाइनल करने से पहले हम कितना टाइम ले सकते हैं उसको? ये एक कोड ऑफ कंडक्ट इसमें है, इसमें एक एग्जैक्ट मुझे भी वो याद नहीं है अभी, मगर पहले जो इनिशियली वो कुछ एक बिल के लिए 2 दिन 3 दिन हुआ करता था, अभी वो कम हो गया होगा। तो अभी लेटेस्ट जो 1 महीना 3 महीना है क्या सर, मैंने कहीं पढ़ा है एग्जैक्टली, मुझे सोर्स नहीं पता है। 1 मंथ है शायद बिल के लिए और 3 महीना फाइनल बिल के लिए है। एग्जैक्ट पहले का एक जीआर था, उसमें कुछ तो 3 डेज या कुछ ऐसा था, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से एग्जैक्ट अमाउंट। मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको, आप अगर ये ग्रुप बना ले और मुझे ऐड कर दे तो मैं कुछ दिनों में आजकल तक बता दूंगा उसको। ठीक है ना, 3 डेज सर मैंने भी पढ़ा है, 3 डेज है। कहीं 3 डेज हमें भी याद, मुझे भी आ रहा है, पुराना जीआर बहुत पहले था। हाँ जी, ठीक है, मैं इसको एक बार यूज भी किया हूँ, इसलिए अब पता नहीं एग्जैक्टली अभी कुछ लेटेस्ट क्या है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कुछ थोड़े टाइम में। ठीक है, ओके सर। सिंस ये टॉपिक में नहीं था इसलिए मैं उसको नहीं देख पाया हूँ ठीक से। ठीक है, बट आई विल अपडेट इट। ठीक है, हाँ तो वाउचर्स में अभी हमने क्या क्या देखा, हेड ऑफ अकाउंट देखा, और जो उसका अमाउंट है वो बराबर टैली होना चाहिए, जितना बिल पास हुआ उतना ही बीडीएस निकला उतना ही वाउचर होना चाहिए, कुछ बाद में करेक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें एक तरह का ऑडिट नोट हमेशा आता है वाउचर्स के रिगार्डिंग, जो फिगर पार्ट 2 में रहता है, पार्ट 1 में रहता है। पार्ट 1 यू गोट आरए बिल का पार्ट 1 पता है सबको ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पता है सबको? यस सर, यस सर। हाँ, तो जो पार्ट 1 में फिगर रहता है उसके लास्ट में वो जीएसटी ऐड करते हैं, अभी प्राइस एस्केलेशन ऐड करते हैं, कभी कभी कुछ रॉयल्टी का एक्सेस रहता है या फिर कुछ पेमेंट रहता है, इरिगेशन मोस्टली होता है, वो भी ऐड करते हैं, अगर कुछ चीज ऐड करते हैं। तो जो हम लोग पार्ट 4 में उस फिगर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक वैल्यू में वर्क्स में,
कभी कभी प्राइस एस्केलेशन अमाउंट, जीएसटी अमाउंट या कुछ छूट जाता है या एक ज्यादा ऐड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लिया आपका पार्ट 1 का जो फाइनल अमाउंट फिगर है इंक्लूसिव ऑल, तो मान लिया कि 2 लाख रुपए है, लेकिन जब वो पार्ट 4 में एंट्री करते हैं ए का वैल्यू वो 2,50,000 ले लेते हैं या 2,20,000 ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स जो होते हैं जल्दी में रहे, पीडब्ल्यूडी में रहे, तो क्या करते हैं वो पार्ट 5 का और पार्ट 2 का टैली नहीं कर पाते या नहीं करते या एमबीएस टैली नहीं कर पाते। उस केस में ये डिफरेंस चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑडिट का कुछ मेमोज भी इशू है कुछ अकाउंट को, वो आपको ध्यान देना है हमेशा आगे वाचर्स में कि जो पार्ट 2 का फिगर है फाइनल वही फिगर एमबी में होना चाहिए और वही फिगर पार्ट 4 के आपके ए के वैल्यू में वार्डन का वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है? ए वैल्यू पता है ना सबको, वार्डन वैल्यू ए से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ यस, वार्डन वैल्यू ए और एडवांस पेमेंट बी, सिक्योर्ड एडवांस सी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर सर। यस। हाँ, तो वो बहुत बार आप लोगों को यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द फाइनल फिगर ए इन पार्ट 4 ऑफ द मेमोरेंडम पेमेंट अलोंग विद द पार्ट 1 एंड आल्सो विद द एमबी। एटलीस्ट आपको जब चेक साइन कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये तीनों फिगर पक्का मिला लीजिए, ठीक है? सही है सर। सर अगर फिगर्स नहीं मिलती है तो हम एमबी की फिगर्स को सर फाइनल लेके चलते हैं। एमबी की फिगर्स फाइनल लीजिए और अगर फाइनल बिल है तो उसको करेक्शन कराइए। ओके सर। मैं फिर से आपको यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ ऑन वाचर्स, बट ये आपके पास जब बिल आता है वाचर बनने के पहले आप उस समय भी ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होने के बाद वाउचर कहलाता है क्या? यस, बिल पास होने के बाद वाउचर बनता है। वो बिल मतलब जो आपके पास आया, कॉन्ट्रैक्टर लेके आया या सब डिवीजन से आया, थ्रू ऑडिटर आया या कैसे भी आया, वो बिल है। जब उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की साइन हो जाती है, दैट विल बिकम नाउ वाउचर्स। नहीं, पेमेंट के बाद बनता है वाउचर की पेमेंट से पहले? पेमेंट के बाद, ठीक है। मैंने पेमेंट वाउचर ही होता है उसको, ठीक। तो रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी लेना है क्या? आते हैं। जीएसटी इज ए सेपरेटली टॉपिक, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत जगह क्रिएट किए, बट ठीक है। मैं अभी मैं उसी पे आ रहा था। वाउचर्स के बारे में मैंने अभी ए फिगर समझा दिया। सेकंड फिगर उसमें सिक्योर्ड एडवांस बी सी। सिक्योर्ड एडवांस के बारे में किसी को कंफ्यूजन है कि मैं उसके आगे बढ़ूं? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। देते नहीं आपको। क्या बोले? अभी तो आप सिक्योर्ड एडवांस नहीं देते नहीं है। हाँ देते हैं। ठीक है, देते हैं सिक्योर्ड देते हैं, ठीक है। तो वो सी फिगर आता है। और अगर एडवांस पेमेंट इरिगेशन में, यस, हाँ इरिगेशन में तो नहीं है, हम लोग तो कभी मतलब आज तक तो नहीं दिए सिक्योर एडवांस कभी भी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रहा तो वो सी फिगर आता है और बी फिगर आता है आपका एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट मोस्टली इरिगेशन में यूज करते हैं। वैसे देते कैसे सिक्योर एडवांस, क्या प्रोसीजर है उसका बताइए थोड़ा सा। सिक्योर एडवांस जो है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ मटेरियल साइट पे लाता है, जैसे मैं अभी एक रोड का काम लेता हूँ, ठीक है। रोड के काम में जो आइटम्स यूज्ड होते हैं, जैसे कि बिटुमिन, अगर सीमेंट रोड है तो स्टील, सीमेंट पे मोस्टली नहीं दिया जाता अभी, और जो उससे कंसर्निंग आइटम्स जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर साइट पे सामान ले आया। मान लिया 3 करोड़ का काम है, उसका 1 करोड़ का सामान आ गया। 1 करोड़ का सामान आया तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा भाई मैं इतना सामान ले आया, हम भी काम करने में टाइम लगेगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो फिर सब डिवीजन इंजीनियर एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करता है कि भाई ये मटेरियल साइट पे आ गया है, ये टूटने फूटने वाला नहीं है, नॉन पेरिसेबल नेचर का है, और दैट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द नेक्स्ट वर्क, मतलब इमीडिएटली काम में यूज होगा वो। इस सर्टिफिकेट के बाद कॉन्ट्रैक्टर को हम उसको सिक्योर एडवांस दे सकते हैं। उसके मार्केट वैल्यू, डीएसआर वैल्यू और जो उसका वैल्यू रेट में कोट किया है, जो कम हो उसका 75%, ठीक है। ओके, लोएस्ट का 75%, 3/4, ठीक है। अच्छा सर, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी रहती है? फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी डिप्टी इंजीनियर की, सेकंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक रहा या आपको कुछ उसमें ये रिकवरी बराबर नहीं हो रही तो फिर डिविजनल अकाउंटेंट का रोल आता है वहां पे, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो मटेरियल साइड पे मतलब गिराया गया है, उस मटेरियल की रिस्पांसिबिलिटी की। अगर मान लीजिए मटेरियल चोरी हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर या जो एग्जीक्यूटिव? कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। सेफ कस्टडी ऑफ ऑल मटेरियल एट द साइट आफ्टर द डिलीवर ऑफ साइट अप टू द कंप्लीशन रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी है। एकदम याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल भूलने का नहीं। वर्क ऑर्डर के बाद एज सुन एज वी हैंड ओवर द साइट टू द कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद से कंप्लीशन रिपोर्ट तक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सेटिस्फेक्शन तक
साइट की पूरी जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। अच्छा सर, इन केस अगर मटेरियल चोरी हो सकता है तो हम उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, दैट मींस। कॉन्ट्रैक्टर कस्टडी में तो आप FIR क्यों करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर अपना आप लेगा, नया ला के फिर लगाएगा। अगर वो इशू आपके डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर कोट करता है कि नहीं भाई मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ, कुछ और इशू जाते हैं, उस रिपोर्ट के बेस पे आप FIR कर सकते हैं। FIR नहीं, आप कंप्लेंट करेंगे पुलिस केस में कि भाई ये इशू आ रहा है, आप देखिए क्या करना है। बट डायरेक्टली आपको उसके लिए केस FIR नहीं कर सकते आप। कॉन्ट्रैक्टर कस्टडी है। अभी कभी कभी मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क किया, इरिगेशन में से बड़े वर्क होते हैं तो वॉल सप्लाई करते हैं ये लोग, और वॉल साइड पे लगाई जाती है, वॉल चोरी हो जाती है। देन इस केस में मतलब वो तो डिपार्टमेंट के अंदर है ना, अभी तो डिपार्टमेंट ही FIR करेगा कि वॉल चोरी हो गई है। आपको जो साइट है, वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्क साइट कॉन्ट्रैक्टर के पास है, उसकी चोरी की जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। ठीक है, सेफ कस्ट आप उसमें टेंडर में कंडीशन पड़ी ना, मेरे ख्याल से कुछ क्लाउज होगा, याद नहीं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कस्टडी कॉन्ट्रैक्टर के पास है उसकी। देन फिर या तो फिर उससे रिकवरी करेंगे भाई, आप तो दोबारा बॉल लगाओ, अदरवाइज वी विल रिकवर। रिकवरी किस बात की करेंगे भाई? रिकवरी नहीं करेंगे, वो काम उसका काम कंप्लीट करना उसका काम है, वो नया ला के लगाएगा। आपके पास नहीं, हम नहीं लगाएंगे। देन नहीं, एक मिनट पहले, आपके डिवीजन में जो रिपोर्टिंग हुई है वो कैसे हुई है? रिपोर्टिंग में जो लेटर आया है उसमें क्या लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये सबमिट कर रहा है थ्रू डिप्टी इंजीनियर की चोरी हो गई है और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आपको कंप्लेंट करना है, तो पुलिस वाले समझेंगे क्या करना है, किससे रिकवरी करना है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट नहीं किया है, कुछ लेटर नहीं दिया है, तो ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करना करेगा उससे। ठीक है, उसके बाद जेई रिकॉर्ड करेगा, जेई देखेगा काम हुआ कि नहीं हुआ है, डिप्टी रिपोर्ट सबमिट उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपके पास आएगा। डायरेक्टली डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में आपका उस केस में कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, आपका रोल वही है जो पेपर पे सबमिट हुआ है आपके पास। सर टेंडर में क्लियरली लिखा रहता है कि जो भी सामान आएगा उस सामान के साथ उसकी सिक्योरिटी या उसकी जो भी केयर करनी है उसकी जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर की है। साइट कंप्लीट हैंडओवर उसको है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बहुत सारा लंबा चौड़ा है। ठीक है, फिर भी डिस्कशन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, यू ऑल नो हाउ टू प्रिपेयर ए मंथली अकाउंट, आई एम जस्ट उसके गो थ्रू कर रहा हूं सो दैट आपको कुछ बीच के इश्यूज क्लियर होते जाए। ठीक है, वॉचर्स में नेक्स्ट चीज हो गया, आपको A B C समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा है 5 आता है, 5A 5B आता है विथहेल्ड का। विथहेल्ड क्लियर है सबको? कब विथहेल्ड करना है, कितना विथहेल्ड रिलीज कैसे होता है, ठीक है ना, वो बताएं, डिस्कस की जरूरत नहीं है, वो सब बहुत दिन से काम कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद आपका फाइनल फिगर आता है। उसके बाद हम लोग रिकवरी दो तरह की होती है, 8A और 8B। आपको पता है सब? नहीं, ये नहीं पता सर, रिकवरी से बताइए 8A 8B में क्या है। हम तो सिर्फ रिकवरी जानते कर देते हैं बस, अब A B में नहीं देखते कभी। तो आप जो रिकवरी करते हैं वो 8B में कर रहे हैं, रिकवरी क्रेडिटेबल टू अदर हेड्स। ओके, तो लिखा हुआ है, देख लीजिए फॉर्म में अच्छे से, रिकवरी क्रेडिटेबल टू अदर हेड्स एंड 8A इज रिकवरी क्रेडिट टू सेम हेड, मतलब वर्क में ही क्रेडिट होगा। अच्छा, अब अभी 8A वर्चुअली बंद हो गया है, कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए आप लोग उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे मान लिया आप अभी बोले वाल्व चोरी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर लगाया नहीं, तो डिप्टी इंजीनियर ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई वो बैड वर्क हो गया, काम नहीं हुआ पूरा, तो जो रिकवरी होगी वो 8A में जाएगी, उसकी उसी वर्क की रिकवरी है वो। यस सर। ठीक है, अगर उसमें कुछ रिकवरी है तो वो 8A में जाएगा। हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर को इनिशियली देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोर होता था पहले, उसमें स्टील सीमेंट भी इशू कॉन्ट्रैक्टर, तो उस पे जो वर्क पे इशू हुए मटेरियल उसकी जो रिकवरी होगी दैट इज आल्सो 8A। वर्क से रिलेटेड कोई भी रिकवरी 8A में होगी। ठीक है, फाइन फॉर बैड वर्क भी 8A में जाएगा। ठीक है, बट फाइन फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क 8A में नहीं जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइन फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, जो AC लगाते हैं, जो लिक्विड डैमेज बोलते हैं या फिर जो फाइन लगाते हैं, वो रेवेन्यू है, वो जाएगा 8B में। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लीजिए, फाइन फॉर बैड वर्क अलग है और फाइन फॉर डिले अलग है। उसको क्रेडिट कौन से हेड पे करेंगे सर? वो रेवेन्यू हेड में आपका, जो कंसर्न रेवेन्यू हेड आपका है। हमारे केस पीडब्ल्यूडी केस में 0059, रेवेन्यू में शायद 0701 या 0702 होगा आपका इरिगेशन में। ठीक है, 8A 8B क्लियर है अभी? 8A क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 8B। अब बताइए 8B में क्या क्या रिकवरी करते हैं आप लोग? 8B में सर सारे इनकम टैक्स, TDS, GST, इनकम टैक्स,
जीएसटी और ये रिकवरी का तो डिडक्शन हुए ना सर? यही रिकवरी है, उसका डिडक्शन यही है, डिडक्शन। ठीक है, ओके ओके, रॉयल्टी। चलिए अभी किसी ने वर्ड यूज किया जीएसटी, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? आई होप आप सब जानते होंगे। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जब हम जहाँ से मतलब इनकम जनरेट किसी की हो रही है उस सोर्स से जब हम उसका मतलब टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं उसको टीडीएस बोलते हैं। और नॉन टीडीएस? नॉन टीडीएस मीन्स जो सोर्स से नहीं हो रही हो, एक्चुअल सोर्स से जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वहीं से अगर टैक्स करता है तो टीडीएस होगी। उसके अलावा अगर किसी और जगह से कट रहा है तो वो नॉन टीडीएस होगा। हाँ, उसमें अभी क्या है ना, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जो पहले वैट था ना, वैट, हाँ, वैट जो था पहले वो ये था नॉन टीडीएस था, मतलब जीएसटी सेल टैक्स बोलते थे, सेल टैक्स बोलते थे। और जब वैट जब शुरू आया वैट तो टीडीएस हो गया। तो टीडीएस होने से क्या होता है कि आपका जो डिडक्शंस होते हैं टीडीएस के हिसाब से वो एक बेसिक लमसम फिगर रहता है। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड की भाई इनकम 2% काटो, इनकम टैक्स 2% नहीं है, इनकम टैक्स 10, 20, 30 ऐसा है। बट हम टीडीएस 2% काटते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये मालूम चल जाए कि इतना अमाउंट उसको क्रेडिट हुआ है और उसमें इतना हमने काटा है, 2%, 1%, बाकी आप काट लीजिए। ठीक है। इसका दूसरा कंसेप्ट भी है, उसका हम 15% प्रॉफिट पकड़ते हैं तो उसमें इंटू 2% माने 30% के ब्रैकेट में है ऑलरेडी वो, इस कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट पे जीएसटी भी टीडीएस आया है, मतलब कि आप एक कुछ अमाउंट कट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट बताए ठीक है पता चले इतना पैसा कटा है ना, बाकी वो देख लेगा गवर्नमेंट। ठीक है। टीडीएस में अगर कुछ गलत भी कट गया, ज्यादा भी कट गया, कोई इशू नहीं है, वो टीडीएस उसको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? टीडीएस का मतलब हुआ कि आप एक लमसम टैक्स काट के उसको भेज रहे हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट अपना देख लेगा बाद में। ठीक है। टीडीएस में और डिडक्शन हो गया है तो फिर क्या करना है? नेक्स्ट बिल में पूरा कर लो। ज्यादा हो गया, कम हो गया, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट में कर लीजिए। कम हो गया है और आईटी का नोटिस आ गया है, नोटिस आ गया तो फिर उसको जो पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसको कोई उपाय उसका नहीं है। भरो पेनल्टी। हाँ हाँ, उसको भरना पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं, आपको कम नहीं काटना है मोस्टली जो। हाँ यस हाँ सर, अब ये डिवीजन अगर छोटी है और वो वाउचर्स ला रहे हैं लेकिन उस पे टीडीएस नहीं कट कर रहे हैं, डिवीजन छोटी है तो उसका टीडीएस हाँ आईटी टीडीएस होगा, फिर डिपेंड करेगा। 2.5 लाख से नीचे तो करना ही नहीं, 2.5 लाख से नीचे तो सर जीएसटी टीडीएस नहीं कट करना है, इनकम टैक्स टीडीएस तो कट करना ही होता है। वो 30,000 सर एक मिनट सर, वो ये क्या ऐसा है कि अगर एक टाइम पे आप परचेज कर रहे, एक वाउचर ला रहे 30,000 का, या फिर एक साल में आप 60,000 तक खर्चा कर रहे हैं, तो पूरे पे जितना भी आज तक आपने सामान लिया है उस पे आप पूरे पे इनकम टैक्स टीडीएस काट लोगे? यस है ना। तो सर हम क्या करते हैं कि अभी वो पूरे साल का तो क्या देखेंगे, अभी शुरुआत से ही जैसे वाउचर आता है उस पे 2% टीडीएस कट कर लेते हैं। लेकिन सर डिवीजन वाले बोलते हैं कि मैडम हमारे यहाँ इतना खर्चा है ही नहीं किसी भी चीज का, तो हम इनकम टैक्स टीडीएस क्यों करें। और वैसे भी हमने जो नंबर होता है सर वो सरेंडर कर दिया, क्योंकि हमारे डिवीजन पे खर्चा इतना नहीं है किसी भी हेड पे। कौन सा नंबर सरेंडर? 10 नंबर। हाँ 10 नंबर सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, सरेंडर होता ही नहीं ना, क्या जरूरत उसको, आपका तो डिपार्टमेंट ही है ना। हाँ तो अभी वो टीडीएस मेरा टॉपिक नहीं है, मैं फिर भी आपको जस्ट थोड़ा डील कर देता हूँ, जस्ट 2 मिनट के लिए। जो भी जो छोटे डिवीजन होते हैं जिसमें खर्च स्टेशनरी और बाकी चीज ज्यादा होती है, उसमें एक स्टेशनरी रजिस्टर मेंटेन होता है, बाकी में होता है, उसमें पर्टिकुलर अच्छे से होना चाहिए। स्टेशनरी रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब है कि आप अप्रैल से स्टार्ट कीजिए उसको, जैसे उसका खर्च 30,000 गया किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का या पर्टिकुलर एजेंसी का, उसको इमीडिएटली टोटल पे टीडीएस काट लीजिए उसका। सर इस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी रजिस्टर। स्टेशनरी। सर इतना पॉसिबल नहीं है ना वॉच करना कि एक एक आदमी का पर्टिकुलरली देखते रहो कि इसका इतने से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। इवन जब ज्यादा बड़ा अमाउंट हुआ 10 या 12, 15 हजार तो टीडीएस काटो, अपना काम खत्म। अभी हम बार बार उसको रजिस्टर देखते रहेंगे तो फिर हम यही करते रहेंगे, कहाँ से देख पाएंगे। मैंने बताया उनका डिवीजन छोटा डिवीजन है, क्वालिटी कंट्रोल का डिवीजन शायद होगा या फिर कुछ जिसमें खर्चे कम मेंटेन कर सकते हैं। आपके डिवीजन, आपके केस में अगर कुछ बड़ा डिवीजन है पीडब्ल्यूडी का, इरिगेशन का, जहां पे इस तरह खर्चे ज्यादा नहीं है, कम है, या फिर दूसरे टाइम से ज्यादा है, तो आप, मैंने एक रूल बनाया 10,000 से ऊपर सब में काट लेता है। मैं भी करता हूं सर, मैं 5,000 के ऊपर काट लेता हूं। हालांकि वो रूल गलत है, कोई किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो मैं 30 के नीचे नहीं काटता, फिर उसका रिकॉर्ड निकाल के देखता है, अदरवाइज मैं दोस्त काट लेता सब पे। ठीक है।
सर अभी वो ये बोल रहे हैं कि मैडम 10 रजिस्टर ही हमने 10 नंबर ही हमने सरेंडर कर दिया है, तो हम इनकम टैक्स टीडीएस कैसे काटें? तो बाद में अगर उसका कुछ भी क्यों खर्चा तो रहता ही है सर, छोटा छोटा करके वो करते ही है, पूरा निकाल ही लेते हैं पैसा, तो फिर बाद में ये इशू थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। क्या है कि 10 नंबर सरेंडर करने का रीजन क्या था? पहला बात, 10 नंबर सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं, कभी नहीं, उसमें उस पैसे कटते नहीं, कुछ होता नहीं उसमें, ऐसा कुछ ये नहीं है। और वो गवर्नमेंट के नाम से रहता है, ऑन बिहाफ गवर्नमेंट रहता है वो, तो सरेंडर किया उन्होंने, गलत किया वो, पहला बात मेरे हिसाब से। मे बी देयर मे बी अदर इश्यूज आल्सो देयर। तो फिर भी आपका 10 नंबर आपको फिर से जनरेट कीजिए और उसका 10 नंबर पैन नंबर के इसमें डालना पड़ता है उसको, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप उसको पीएस आपको पीए उससे डिस्कस कीजिए, वो बताएगा कैसे करना है उसको, ठीक है। उसका ड्यूटी है वो, इनकम टैक्स का जो रिटर्न सबमिट करना वगैरह जो है, आपका ड्यूटी सिर्फ डिडक्शन है, ठीक है। तो हम लोग अभी इनकम टैक्स, जीएसटी और क्या काटते हैं? इंश्योरेंस फास्ट आ रहा है, बिल से काट लेना है, ज्यादातर नहीं काटते। फिर वर्कर वेलफेयर सेस और बाकी रॉयल्टी वगैरह, ये सारे डिडक्शन आपको देखना है। जो डिडक्शंस एमबी में प्रपोज्ड है वो पक्का अच्छे से चेक कीजिए, वो सारे डिडक्शंस यहाँ होने चाहिए, ठीक है सर। इसमें जीएसटी का थोड़ा पूछना है, डिडक्शन वाले पे। जीएसटी में क्या पूछना है? पूछिए। सर जैसे टीडीएस तो 2% हम काटते ही हैं, तो उसके अलावा जो हम लोग डिपॉजिट में रखेंगे वो बहुत जगह मैंने मतलब अपने इधर साइड में हम लोग तो 12% रखते हैं, लेकिन मैंने विदर्भ मराठावाड़ा के कई रीजन मतलब डिवीजन में लोगों से बात की तो वो 10% ही अपने पास काट के रखते हैं। तो इसमें क्या सही है? मेरे हिसाब से तो 12 ही सही होना चाहिए, क्योंकि हम अभी देखिए, अभी ये टॉपिक मैं बस 2 मिनट में डील कर देता हूँ, ज्यादा इस पे डिस्कस करेंगे तो मेरा समय बाकी लंबा बहुत है, ठीक है। फिर मैं 2 मिनट डील करता हूँ। जीएसटी टीडीएस अलग है, 2% काट रहे हैं जो, ठीक है। जो 2% टीडीएस काट रहे हैं, 1% एसजीएसटी, 1% सीजीएसटी और 2% आईजीएसटी, ठीक है, जो केस जिस तरह का रहेगा उस हिसाब से। तो ये हम काट रहे हैं टीडीएस, दिस कैन नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद द 12% और 18% और 16 जो भी परसेंट है, वो अलग है, ये अलग है, पहला आप अच्छा समझ लीजिए। 2% टीडीएस काट रहे हैं, दिस इज ओनली टीडीएस इंटीमेशन टू गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट कितना पेमेंट हुआ है, ठीक है, क्लियर, खत्म, अलग हो गया। सेम जैसे आप इनकम टैक्स काटते बाकी चीज काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो 12% कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, ठीक है, वो वैसे ही दे रहे हैं जैसे उसको हम इनकम टैक्स देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, टेस्टिंग देते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर के रेट्स आते हैं उसमें इनकम टैक्स मिला रहता है, रॉयल्टी मिला रहता है, बाकी टैक्सेस मिले रहते हैं, सभी चीज मिली रहती है उसमें, क्वेरी चार्ज मिला रहता है। रॉयल्टी को रेट्स में ऐड नहीं किया गया है, उसको अलग रखा गया है, इसलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। इसलिए कि गवर्नमेंट का कहना है कि रॉयल्टी के रेट वेरी करेंगे, कम ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगा, इसीलिए जीएसटी का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट से डीएसआर या एसएसआर जो भी बना है उससे बाहर रखा हुआ है। उसको आप जब रिकैपिटलेशन शीट बनाते हैं ये एस्टिमेट में, उस समय उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट में जितना ऐड किया हुआ है उतना गवर्नमेंट, उतना कॉन्ट्रैक्टर को आपको देना है। अभी मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट में 12% जीएसटी ऐड किया हुआ है अलग से, तो आपको वो 12% कॉन्ट्रैक्टर को अलग से देना है। दैट इशू इज डिफरेंट। और जो टीडीएस है 12% और 2% अलग है। 12 - 2 10 या 12 + 2 14 नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बताता हूँ डिपॉजिट का क्या इशू है। जीएसटी जो 12% दे रहे हैं वो चूंकि 2000 ये अभी 17 में लागू हुआ, उसके बाद में कुछ कंफ्यूजन है, पैट देना, टीडीएस देना, क्या देना। वीआईडी से सर्कुलर निकाला है कि जब तक वो उनसे परमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको इशू नहीं करना, नहीं देना उसको। अलग अलग कॉर्पोरेशन से मे भी अलग अलग मल्टीपल अलग अलग निकाले होंगे, मगर जो उनका किससे परमिशन लेंगे? वीआईडीसी से, ओके, बोलेगी उसके बाद देना है उसको। तो आपको उसको रिपोर्ट भेजिए, सीए का सर्टिफिकेट वगैरह साथ में फिर देना है। पीडब्ल्यूडी में जहां जहां जीएसटी एस्टिमेट में ऐड है वहां वहां जीएसटी उसको पेएबल है। अच्छा, मतलब बिल के साथ ही दे देना है, बाद में उसकी मतलब चेकिंग वगैरह नहीं करने की भरा है कि नहीं भरा है, उसका ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन वहां पे अभी नहीं है। अभी सब लोग इसी दे रहे हैं। हालांकि उसमें इनिशियल इंस्ट्रक्शंस आए थे, वो कुछ दिन चले 20 के बाद से भी सभी में ऐड है, उसमें देना है, ठीक है। तो ये तो सर सही है पीडब्ल्यूडी वाला। अभी इसमें अननेसेसरली वो लोग फिर कुछ भी लेके चले आते हैं, सर भरा है ऐसा वैसा करके। हालांकि हम लोग जीएसटीआर 1, 3B और B2B, B2C की सारी डिटेल सीए सर्टिफाइड करके चेक करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अमाउंट मिसमैच हो जाता है।
क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क होता है वहाँ B2B में बहुत अमाउंट पड़ जाता है। इन जो बड़े होते डिवीजन हैं। कॉर्पोरेशन कौन सा कॉर्पोरेशन है या इरिगेशन डिवीजन है? अभी तो ये गवर्नमेंट वाला है, मेरे पुराने वाले में वो MKVDC था, तो हाँ, उसमें बराबर है। तो उसमें MKVDC का एक्सप्रेस ऑर्डर्स आए हुए हैं। MKVDC भी शायद VIDC से ऑर्डर निकाला है, आप उससे वेरीफाई कीजिए फिर पेमेंट कीजिए उसको। ठीक है, आपका डिमांड देना पड़ता है आपको ना उसमें। WRD का GR है, WRD का GR है। हाँ, WRD में वही सेम GR है, आपको वेरीफाई करना है फिर पेमेंट करना है उसको। ठीक है सर, इसमें रिकवरी क्रेडिटेबल टू अदर वर्क का थोड़ा बता दीजिए। यही बता रहा हूँ मैं अभी, 8B है ये जो बता रहा हूँ, इनकम टैक्स GST ये सब अदर वर्क का है, 8B है सारे। जैसे अदर वर्क की जो हम रिकवरी, जैसे मतलब मान लीजिए कोई हमने कहीं पे रिकवरी थी, वो उसके बिल से रिकवर नहीं कर पाए, अच्छा, तो वो वाली कैसे एडजस्ट? अच्छा, अदर वर्क दूसरे काम का रिकवरी इस काम से करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, उस पर आता हूँ मैं, वो थोड़ा सा अलग इशू है, बताता हूँ उसको। दूसरे वर्क का मैंने एक्सेस हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे काम से रिकवरी करना है वो। ठीक है, हाँ, उस पर आता हूँ। अभी पहले आप 8B के पूरे आइटम समझ गए? ठीक है सर, एक डाउट आ रहा है। सर, एक डाउट है सर। हाँ सर, ये PWD के कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट कर दी है तो हमें आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी देनी चाहिए वापस। मतलब उसको आप, वो आइटम में नहीं है सर, वो रिकैप में उसने इंश्योरेंस शीट को रिकैप में डाला हुआ है, पर वो कह रहे हैं कि जैसे उसमें सर एक CSR का उसने मेरे को एक प्रिंट ला के दिया है कि द कंट्रैक्टर शैल प्रोड्यूस द वर्क इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द सेम विल बी रीइंबर्स्ड टू द कंट्रैक्टर if the contractor fails to produce the work insurance policy then it should be deducted from first RA bill। ठीक है सर, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें नहीं दे रहा है तो हम उसको डिडक्ट कर देंगे, पर अगर सर वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लाके दे रहा है तो यहाँ पर PWD में सर लोग कॉन्ट्रैक्टर्स इस पे इशू उठा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है आपको वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हमें री इन्वर्स करनी पड़ेगी। जैसे वो हम सर वो वर्क पोर्शन के बाद शेड्यूल में नहीं है तो कैसे दे पाएंगे? ये इशू बराबर है। It is capped in recap. It is reimbursable, I think, as per the tender clause। ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ उसको, 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़े से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में डिफरेंसेस हैं, बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहला है कि जो अभी इंश्योरेंस का वो आइटम है, शेड्यूल B का आइटम है। ठीक है, तो मान लिया आइटम में इंश्योरेंस के लिए लिखा हुआ है 1 लाख रुपए प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया 70,000 का, उसको 70,000 70,000 ही रिम्बर्स करना है, 1 लाख रिम्बर्स नहीं करना है। ठीक है, बाकी वर्क सेविंग होगा वो। पहला इशू क्लियर हो गया। नेक्स्ट इशू है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं प्रोड्यूस करता है तो अब जब शेड्यूल B का आइटम अलग हो गया है तो उसको देंगे ही नहीं हम। ठीक है, हाँ, लेकिन GR में क्या लिखा हुआ है कि उसको कट करके इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है। ठीक है, यहाँ पे इन पर्सन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। PWD इरिगेशन और एनी डिवीजन इज नॉट हियर फॉर कैरिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए PWD नहीं बना हुआ है, हमको जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे ऐसा नहीं है। हमारा ड्यूटी है, आपका लिखा हुआ है कट करके हम भेज दिए, आपको लाना जाके लाओ। ठीक है, इनफैक्ट दिस शुड बी द फाइन, ये फाइन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को और रेवेन्यू जाना चाहिए। मैं इसके लिए बीच में कुछ लेटर्स कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, बाद में वो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हुआ। कि PWD और इरिगेशन इज नॉट एजेंसी टू क्या बोलते उसको, इंश्योरेंस निकालने की एजेंसी नहीं हमारा। ठीक है सर, हम उसका डिडक्शन करके भेज रहे इंश्योरेंस को, उसको कराना है, करा के लाए, फायदा उसको है। अगर वर्क में कुछ इशू आता है तो पैसा किसको मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। वर्क का जो नेचर ऑफ वर्क जो है उसका जो गुड कंडीशन रखना, उससे गवर्नमेंट को फायदा है। बट जो बेसिक मेन जो फायदा है वो उसी को है, क्योंकि DLP तक रोड मेंटेन उसको करना है। अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे दे रही है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ही प्राइमा फेसिया जाके इंश्योरेंस कराना है। अगर कोई इंटरेस्ट के लिए जिद करता है तो उसको क्लियर बोलिए, इन फ्यूचर आई विल, वो जो सबमिट करेंगे पैसा है वो रेवेन्यू डाल देंगे, तुमको जैसे लाना है लाओ। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट गवर्नमेंट, आपको वो नहीं करना है, आपको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस को लिख दीजिए, भाई ठीक है हम सबमिट कर दिया, उसको भेज दो इंश्योरेंस, वो भेजेगा, उसका काम है, आपकी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अगर वो इंसिस्ट कर इंश्योरेंस लेके आया हूँ तो GR जो अभी CSR में है सर, उसमें रेट्स में इंश्योरेंस की ऐड नहीं है, तो अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आया है सर तो उसमें सर CSR के जो पहले 17 पेजेस है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अगर वो पॉलिसी लेके आ रहा है तो उसको सेम अमाउंट का रीइन्वर्स कर देना चाहिए सर। तो इसको ऐड करके दे देंगे ना फिर, और डिडक्ट नहीं करेंगे 8B में। यस, उसको ऐड करना होता है, ऐड करना है, बराबर है, आपको उतना आइटम ऐड हो जाएगा। वो जैसे बताया मैंने 70,000 उसका ऐड हो जाएगा उतना उसमें। एक सर एक और पॉइंट है
कि अगर ये उसने इंश्योरेंस पॉलिसी सर शेड्यूल बी में नहीं डाली हुई और सिर्फ रिकैप में डाली हुई है तो फिर भी उसको दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं ना, आपके रिकैपिटुलेशन सीट में एस्टिमेट में कहीं भी अगर ऐड है तो आप दे सकते हो उसको, दे सकते हैं ना? ठीक है सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। ठीक है ना। मेरा लास्ट पॉइंट बच गया, जो आप इंश्योरेंस को कॉपी भेज रहे हैं, उसका जो अमाउंट भेज रहे हैं, रिमबर्स कर रहे हैं, उसका डिडक्शन रिकवर करके उसकी कॉपी काउंटर को दे दीजिए, भाई मैंने भेज दिया, तुम देखो वहां क्या करना तुमको। ठीक है, यस सर, यस सर। इन एनी केस आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई जीआर में नहीं है कि पीडब्ल्यूडी इरिगेशन या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंश्योरेंस कराना है। अगर लिखा हुआ है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कीजिए उसको, मैं कहीं देखा नहीं। ठीक है, नहीं लिखा हुआ एसएसआर में है ना सर, अभी आया है जो पीडब्ल्यूडी का। हाँ तो उसको डिडक्ट करके भेजना है, इंश्योरेंस कराना कहाँ लिखा हुआ है? नहीं वो यही लिखा कि एग्जीक्यूटिव पॉलिसी लेगा और फिर उसका जितना 1% उसके उससे बिल से काटा जाएगा। अगर उसने पॉलिसी लाके दिया कॉन्ट्रैक्टर तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसका इंश्योरेंस के लिए पैसा काट के इंश्योरेंस को भेजेंगे हम। इंश्योरेंस कराना ऐसा लिखा होगा ही नहीं है, प्रीमियम पॉलिसी लाके देना। सर एक्चुअली वो इंश्योरेंस नहीं होता है सर, जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं वो तो पेनाल्टी होती है। पेनाल्टी इस बात की है कि वो इंश्योरेंस लेके आया नहीं, उसको इंश्योरेंस का नाम ही नहीं देना चाहिए, वो तो हम काट के भर देंगे सीधे गवर्नमेंट को, बाकी इंश्योरेंस का उनका लुकआउट है। गवर्नमेंट को किधर भरते हैं? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को भरते हैं कि इधर? हाँ डिपार्टमेंट को भरते हैं, लेकिन हम उसकी पॉलिसी जनरेट नहीं करते हैं कि हम उसकी पॉलिसी लाए। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इंश्योरेंस मुंबई को भरा जाता है। मैं इस टॉपिक पे चर्चा ज्यादा नहीं कर सकता, मेरा आगे बहुत है। हमारा टॉपिक मंथली अकाउंट का प्रिपरेशन है, मैं इसको इस तरह शुरू कर रहा हूँ कि आप कहाँ से कैसे कैसे चेक करेंगे, इसलिए आपको सिर्फ चेक करना है कि इंश्योरेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर फ्यूचर कभी दूसरा टॉपिक रहा या कभी टाइम मिला, मैं इंश्योरेंस को अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, करेंगे। इवन अगर आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ, करूंगा, या बाद में फोन कीजिए। ठीक है ना? चलिए, ठीक है सर, इंश्योरेंस का कुछ भी हुआ तो बाकी डिडक्शन चेक कीजिए, चेक अमाउंट चेक कीजिए। तो ये वाउचर का मोस्ट थिंग जो है आपका क्लियर हो गया कि भाई वाउचर बराबर है, कैशबुक से टैली कर लीजिए, कैशबुक एंट्री है, आपको नोटिस में उसको साइन भी करना है, नहीं भी अभी तो आजकल तो ठीक है। वॉचर्स आपके पूरे देख लिए और वॉचर्स के सारे डिटेल्स देख लिए। लास्ट चीज वॉचर देखना है। यस हाँ सर ये लेबर सेस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे कट करते हैं या कंस्ट्रक्शन वैल्यू पे? सर बिल वैल्यू पे। सर हमारे पास में एक एजेंसी है नेशनल हाईवे में, उनका लेटर आया है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी टोटल, उसमें से कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट उन्होंने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च किया है या जो उन्होंने फाइनेंशियल जो खर्चे किए हैं उनको डिडक्ट करके और अमाउंट निकाला है सर। तो उन्होंने डिमांड की है सर। आपका जो नेशनल हाईवे में जो आरएफपी है या कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर सर उनका ये तर्क है कि हमने गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर ये सबमिट किया था प्रपोजल और हमको वहां से रिम्बर्स हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं। आपको जो हमारा जो डब्ल्यू वेलफेयर सेस का जो कंडीशन है, उसमें आपको बिल वैल्यू पे 1% कट करके भेज देना है। ठीक है, आपको उसको बिल वैल्यू पे। अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ क्लेम कर रहा है तो नेशनल हाईवे में डिसीजन अथॉरिटी आरओ है, आरओ मुंबई जो एमआरटीएच का है वो है। अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ क्लेम मांग रहा है, आप सिंपली उसको नोटिस में लाइए और एक आरओ कॉपी भेज दीजिए उसको। अगर आरओ क्योंकि सर जो तो आप उसको दे सकते हैं। सर जो लेबर सेस के लिए जो जीआर निकला हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें भी सर कंस्ट्रक्शन वैल्यू के ऊपर ही लिखा हुआ है सर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मेंशन नहीं है सर। नहीं, बिल वैल्यू वही बोले, कंस्ट्रक्शन वैल्यू जो जितना पार्ट कंस्ट्रक्ट हो उतना बिल वैल्यू बोलते हैं, इसलिए मैं बिल वैल्यू बोला। हाँ सर, उसमें जीआर में कंस्ट्रक्शन वैल्यू मेंशन है सर। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन वैल्यू इज द बिल वैल्यू, जो आपको बिल निकालना है, जो के फिगर जो बोलते हैं इसको आप लोग। थैंक यू सर। ठीक है ना? चलिए, डिडक्शन हो गया। एक लास्ट चीज बचा हुआ है इसमें, उसमें एक पार्ट 5 भी होता है बिल में, सबसे नीचे। उसमें कुछ रिमार्क्स या फिर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिखाता है चेक मेजरमेंट, उसकी एंट्री वहां होती है, पेज नंबर, परसेंटेज, आइटम नंबर। ठीक है, ये बहुत कम डिवीजन में फॉलो होता है, पीडब्ल्यूडी बिल्कुल नहीं होता है, इरिगेशन में कहीं होता है, उसको जरा देख लिया कीजिए, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप रजिस्टर में एंट्री है तो चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करके बाद आपको वाउचर्स के साथ कैशबुक मिला लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, वाउचर्स के बारे में किसी को कंफ्यूजन अभी? नहीं सर। ठीक है ना? अब वाउचर को चेक करने के बाद क्या उसका नेक्स्ट काम क्या है? मंथली अकाउंट की प्रिपरेशन में नेक्स्ट काम, ये काम कुछ लोगों ने किया होगा जरूर, नहीं किया तो पक्का कीजिए आप लोग, मैनुअली कीजिए अगर हो सके तो, ऐसा ऑनलाइन में भी होता है, बताता हूँ ऑनलाइन बताता हूँ अभी।
वाउचर्स के हेड वाइज अरेंज कीजिए सबको, मतलब एक रजिस्टर में, जिसको हम लोग पहले 80 या 91 बोलते थे, कहीं कहीं 80 बोलते थे, कहीं कहीं 90 बोलते, 91 बोलते हैं। हेड वाइज अरेंज कीजिए उसको, कौन सा कितना खर्चा हुआ, जैसे 0059, 205, 3054, CRF 5054, 4210, जो भी हेड है, कितने वाउचर नंबर हेड, वाउचर नंबर हेड में जिसका एंट्री करते जाइए पूरा, और साथ टैली कीजिए विद द BDS। मेरी बात समझ में आई? माय पॉइंट? आई थिंक नो। आ गई सर। हाँ, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी ना कि किस साइड पे कितना खर्चा हो गया है। हाँ, वाउचर के साथ साथ आपको रखना पड़ेगा आपका MRB, मनी रिसिप्ट, और ट्रेजरी रिमिटेंस बुक भी, ये सारा एक जगह रखिए। आप पहले देखिए 0059 में कितने पैसे खर्च हुए, फिर 2059 में कितने खर्च हुए, वाउचर नंबर 1 बाई 2059 का, वाउचर नंबर 2 3054 का है, वाउचर नंबर 3 5054 का है। ऐसा करके आप पूरा अरेंज कीजिए तो आपको हेड वाइज पूरा खर्चा मिल जाएगा। दिस शुड बी, ऑल हेड शुड बी टैलीड विद द BDS ड्रॉल और दैट मंथ। ठीक है, पहला। दूसरा, जितने रिमिटेंस रजिस्टर में रिमिटेंसेस हुए हैं वो टोटल टैली होना चाहिए आपका, जो आप रिमिटेंस निकालना है आप दिए हैं। तीसरा, जो रेवेन्यू पार्ट है 0059 जो आप MR से टैली कर रहे हैं वो भी टैली होना चाहिए। ये सारे हेड्स को टैली कीजिए, तभी आपका अकाउंट बनता है। ये कितने लोगों ने इसे खुद से किया है? एटलीस्ट वन टाइम मंथ में, एक साल में एक मंथ, कोई मंथ में आप इसको टैली जरूर कीजिए खुद से, हाथ से लिख के। यू विल बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। मंथली अकाउंट आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। एक बार जरूर आप खुद से कीजिए, ठीक है? एनीवन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर ये जो आप रजिस्टर बोल रहे हैं कौन सा है सर, 88 या 90 जो वाउचर्स को हेडवाइज अरेंज करने का है? कहीं कहीं वो 91 बोलते, कहीं 80 बोलते, अलग अलग है, बट दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ मंथली अकाउंट। वाउचर्स कंपाइलेशन है वो, हेडवाइज कंपाइलेशन है बस। सर अगर डिवीजन में ये रजिस्टर मेंटेन ही ना होता हो तो आप अपना खुद से कीजिए ना, वो एक सादा पेज पे कीजिए, कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हेडवाइज कैसे अकाउंट में एंट्री होती है और कैसे वो अकाउंट टैली होता है। इसके लिए आपके पास जो हेड ऑपरेटिव है, जैसे मैं आपको रफली एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास PWD में 0070 वो महती अधिकार वाला, फिर 00 और कुछ है, बाकी 4-5 हेड रेवेन्यू का है, 0853 रॉयल्टी का। उसके अलावा एक्सपेंडिचर हेड 2059, 2216, फिर 3054 में 4-5 हेड है, उसमें CRF भी है, उसमें OR भी है, FDR भी है, कुछ और दूसरे भी होते कभी कभी, ठीक है? उसका मेजर हेड 5054, 4210। अब आपको कैसे करना है, जैसे आप पहले आप पूरा रिसिप्ट टैली कर लीजिए MR से, ठीक है? रिमिटेंस टैली कर लीजिए पूरा, रिमिटेंस रजिस्टर से पूरा एंट्री कर लीजिए पूरा हेड में 8782 रिमिटेंस करके। फिर वाउचर नंबर 1 किसका है? 2059, उसमें एंट्री कर ली 2059 के नीचे वाला नंबर 2059 वाउचर, ऐसा करके सभी हेड का जब टैली करेंगे तो आपको अकाउंट का फिगर मिल जाएगा एक बार। अगर आपके डिवीजन में कोई MS जो अपना अकाउंटिंग शुरू हुआ उसके पहले का किसी से, कोई पुराने आदमी से पूछिए, और रजिस्टर दिखाएंगे आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है उसको, ठीक है? उसमें लिखा रहता है बनाते हैं, एक बार बनाइए, आपको यू विल गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग, कैसे होता है मंथली अकाउंट, कैसे बनता है। मोस्टली SSC करते हैं लास्ट डेट को, अगर आपको 7 बिट है तो भी हो जाएगा, तो भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या मालूम चलता है, अभी क्या है कि जब आप 91 फॉर्म भर रहे हैं, 80 भर रहे हैं, आप जो कंपाइलेशन कर रहे हैं उसमें बहुत टैली नहीं करता, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलता है कि भाई टैली क्यों नहीं कर रहा है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम हो गया है, ठीक है? तो वहां भी आपकी गलती पकड़ में आती है। अगर कुछ गलती हुआ तो किसी हेड का खर्चा ज्यादा से गलती डाल दी या कुछ फिगर नहीं मिल रहा है तो वहां गलती समझ में आती है उसकी, ठीक है? कंपाइलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मंथली अकाउंट, ठीक है? एक बार मंथली अकाउंट का ये पार्ट खत्म हो गया, फिर आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से हो जाता सब, बाकी सब फॉर्म्स बन जाता है आराम से। इसके बाद जब आप कंपाइलेशन कर रहे हैं तो आपके पास ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से काम में सेंटेज चार्ज लगाना है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट TNP चार्जेस और डिपॉजिट काम में CC, ठीक है? ये लगाना है, उसमें ऐड करना पड़ेगा। करीब करीब सभी कामों में डिपॉजिट में 5% सेंटेज चार्ज है, ठीक है?
4 + 0.5 + 0.5 कुछ ऑडिट चार्जेस उसके और 4% एस्टिमेट चार्जेस 5% है सभी में। इफ अदरवाइज किसी का हमें लिख के आया है कि नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, अदरवाइज सभी सेंटेज चार्ज में लगाना है उसमें, ठीक है। जो कैपिटल हेड्स है, मेजर हेड्स जो है एच ग्रांट वाले, उन सबों में आपको एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्ज लगाना है 13.9% और 1.1%, ठीक है। ये सभी चार्ज लगा के आपको ऐड करना है, तब आपका मंथली अकाउंट टैली होगा पूरा, ठीक है। जो लोग पीडब्ल्यूडी में है वो समझ जाएंगे अच्छे से। अभी इरिगेशन में भी अभी क्या हो रहा है कि मेजर हेड्स का अलग से एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्ज का ग्रांट आता है। अभी आज के डेट में अभी एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्ज का ग्रांट अलग से आता है, ठीक है। पहले उसी में आता था, हमको उतना माइनस करना पड़ता था 15%, अभी नहीं, अभी 13.9% अलग, और उसको आता इंटर डिविडेंड ट्रांसफर, कैसे का कीवर्ड यूज करता, या इंटर ट्रांसफर कुछ आता है, ठीक है। उसके लिए करना है, उसका बीडीएस निकाल लेना है और आपको उसको ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एंट्री उसके 100 फॉर्म में होती है। चलिए, तो आपको कंपाइलेशन के समय समझ में आ जाएगा कि किसमें किसमें क्या क्या ऐड करना है, कौन से में कितना खर्चा हुआ, दैट शुड बी टैली विद द बीडीएस स्लिप जनरेटेड, ठीक है। अभी मंथली अकाउंट का प्रिपरेशन में वाउचर पोस्टिंग और फॉर्मेट, ये कंपाइलेशन, यहां तक समझ में आया क्लियर सबको? यस, यस सर। हाँ, एक बार आप लोग खुद से मैनुअली कीजिए, मैं भी ऑनलाइन सिस्टम में जाऊंगा तुरंत, बस 10-15 मिनट में उसका, ठीक है। कंपाइलेशन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक डिफरेंट फॉर्म्स जनरेट करना है। सबसे पहले यह जनरेट करना है फॉर्म 101। 101 फॉर्म क्या है? ये सभी डिविजन के सेम है। 101 क्या? मंथली अकाउंट, मतलब टोटल रिसिप्ट, टोटल डिसबर्समेंट, ठीक है। टोटल रिसिप्ट, टोटल डिसबर्समेंट, याद रखिए कोई भी एंट्री रहेगी उसकी दोनों तरफ एंट्री रहेगी, एक एंट्री रिसिप्ट में, एक एंट्री पेमेंट में, मतलब टोटल टैली होना चाहिए आपका। जैसे आपने अभी एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्ज लगाया तो ये वर्क के एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्जेस इज एडेड टू द वर्क, और इसका दूसरा एंट्री कहाँ होगा? क्रेडिट टू द रेवेन्यू हेड आपका, जो आपका रेवेन्यू, सॉरी, जो रेगुलर हेड आपका है डिवीजन का, उसमें क्रेडिट होगा। ये कैसे होगा बता रहा हूँ, अच्छे समझिए इसको, ये टॉपिक हमारा है आगे WCT में, अगर आपको समझा देना पे बी लिसन केयरफुली, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक हेड लेता हूं कोई 50-54 का, ठीक है। 50-54 में खर्चा हुआ हमारा 1 लाख, ठीक है। उसमें एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्ज मिला के वो 1,15,000 हो गया। तो आपका मंथली अकाउंट में एंट्री आएगी 1,15,000 आएगी, लेकिन आपने चेक जो ड्रॉ किया होगा 1 लाख पे ड्रॉ किया होगा, तो 15,000 का डिफरेंस आ जाएगा आपका। तो 15,000 जो है वो आपका जाएगा 2059 के डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन खर्च में, माइनस होगा वहां पे, ठीक है। डेबिट टू वर्क प्लस हो गया, डेबिट टू वर्क, और क्रेडिट टू आपका रेगुलर हेड 2059 डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें वहां माइनस होगा एक्सपेंडिचर में, रेगुलर एक्सपेंडिचर में माइनस होगा। अगर इरिगेशन में है तो 0701 या 2701 या 2702 में होगा वो। आप लोग आज ही अपना डिवीजन में इसको चेक कीजिए, अगर किसी के पास कोई है तो देखिए, वेरीफाई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन पूछिए, मेरा कल भी क्लास है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्जेस का एक्सपेंडिचर कैसे बुक होता है मैंने बताया आपको, फिर से बता रहा हूं। एक्सपेंडिचर जो होगा टीएनपी चार्ज का, डेबिट टू वर्क, क्रेडिट टू आपका रेगुलर हेड, पीडब्ल्यूडी में 2059, इरिगेशन में 2701 या 2702 जो रहा। क्लियर है अभी? ठीक है। अभी डिवीजन में जाइए, इसको चेक कीजिए, देखिए, फिर मुझे कल भी मेरा क्लास है बीएमएस का, उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको भी। अभी आप में से कितने लोगों ने इसकी एंट्री की है? एनीवन प्लीज? क्या देखा? सर देखा नहीं है अभी तक तो इसे। और किसी ने देखा है? ठीक है, अगर नहीं देखा जाके देखिए, अगर आसपास पीडब्ल्यूडी है तो वहां देखिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कैसी एंट्री होती है, मंथली अकाउंट में इसकी एंट्री होती है बराबर, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी कंपाइलेशन आपका हो गया, सीसी वगैरह सब ऐड कर लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 फॉर्म जनरेट करेंगे। सभी हेड का पहले 100 बनाया, 100 टैली हो गया। उसके बाद 100 के रेस्पेक्टिव जितने भी एंट्री है सबका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आपके मंथली अकाउंट में आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं रेवेन्यू से। जैसे जितने भी रेवेन्यू आपके हैं 0059 या 0216 0070 वगैरह वगैरह जो भी हैं, इन सबों का कॉरस्पॉन्डिंग 102 होगा।
ठीक है, 102 रेवेन्यू का, ठीक है। उसके अलावा जितने एक्सपेंडिचर हैं 2059, 2216 या जो भी एक्सपेंडिचर है, सबका कॉरस्पॉन्डिंग 100 होगा, 100 में सबकी एंट्री होगी, ठीक है। 100 इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर हेड, ठीक है। उसके अलावा जो आपका डिपॉजिट है उसका फॉर्म 73 होगा, जो आपका रिसीट एक्सपेंडिचर है। डिपॉजिट के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा अभी 10 मिनट में, पहले एक कर लो। पहले जितने एक्सपेंडिचर हेड है सबका 100 आएगा, जितने रेवेन्यू हेड है सबका 102 आएगा, 102 फॉर्म रेवेन्यू का, ठीक है, ठीक है। कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सब आपको आराम से दिखता है, सब दिखता है, वो उसमें मैनुअल में सब लिखा हुआ है, आपका वो भी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ सारी चीज, आप यू हैव ऑल गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। हाँ, तो अब 100 के में जैसे मान लिया आपका एक 3054 सीआरएफ का काम है, तो मान लिया मेरे डिवीजन में 4 काम है, 4 काम में किसमें कितना खर्च हुआ है इसका डिटेल लिखना पड़ता है, वर्क वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल्स, ठीक है। दैट कम्स टू द 97, एवरी 100 देयर इज ए 97, ठीक है, डिटेल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट हेड। उसमें आपके मेरे चारों काम के नाम रहेंगे, उसमें इस मंथ में कितना खर्च हुआ, अप टू डेट खर्च कितना हुआ, और पूरे अब इस ईयर में कितना खर्च हुआ और अपडेट कितना खर्च हुआ है, ये पूरे उसमें एंट्री रहती है। Along with that कि 97 में आपका एस्टिमेट वैल्यू और प्रशासकीय मान्यता का भी एंट्री का प्रोविजन रहता है, कोई करता नहीं अभी, बट रहता है। यस, एनीवन एनी क्वेश्चन? यस, ठीक है। तो आपको प्रत्येक 100 फॉर एवरी 100 देयर इज ए 97 हैविंग डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी वर्क का एक्सपेंडिचर रहेगा उसमें, ठीक है। अभी यहां किसी को कंफ्यूजन है? फॉर्म 101, 100, 97, ठीक है। आप लोग कोई टैली करते कि नहीं करते अभी? ये इतना टैली करते कि नहीं अकाउंट में? करते हैं ना। हाँ, चलिए, ठीक है। 97 में आपका करंट मंथ का एक्सपेंडिचर है, एनुअल एक्सपेंडिचर है और अप टू डेट एक्सपेंडिचर है। 3 कॉलम उसको याद रखिए, 97 में 3 कॉलम है, ठीक है। ये आप 3 कॉलम्स, 1 एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ। कैमरा जिनको बोलना नहीं अपना म्यूट कर दे माइक प्लीज। एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ, उसके बाद आपका पूरे ईयर का एक्सपेंडिचर और अप टू डेट एक्सपेंडिचर, तीनों उसमें रहता है, ठीक है। फॉर्म 101 में पूरे के पूरे आपके एब्स्ट्रैक्ट रहेगा इसका। तो अभी तक आपको मैंने हेड का एक्सपेंडिचर बता दिया, ठीक है। वॉचर और वॉचर कंपाइलेशन और 101, 102, 102, 100, 197। आप लोग सब लोग कैमरा, आप लोग ऑफिस में घर में कहाँ है मैं समझ नहीं आया, सब कुछ लोग कैमरा ऑन रखिए प्लीज। मुझे लगता नहीं मैं किसी से डिस्कस कर रहा हूँ। सर एडमिन की साइड से बंद है ये। एडमिन के? एडमिन ने बंद किया हुआ है कैमरा क्या? हाँ जी सर, थोड़ा टीम्स में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए हम लोग ने बंद करके रखा है। ओके ओके, नो मैडम, नो, ठीक है। कुछ लोगों के दिखते हैं फेस, तो मुझे लगता है कि मैं किसी से अलाउ है सर, अलाउ है, वो ओपन कर लीजिए। हाँ, जिनको अलाउ ओपन कर लीजिए, अदरवाइज ऐसा आई फील दैट कि आई एम वर्किंग विद कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अब आपका सर बढ़िया आ रहा है। बढ़िया आ रहा है? यस। मेरी फोटो दिख रही है कि नहीं मेरी? यस। हाँ, यस सर, दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रही कि मैं कैसा दिख रहा हूँ उधर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, हीरो लग रहा है बिल्कुल। अरे वाह वाह, थैंक यू। चलिए, तो अभी तक जितना डिस्कशन हुआ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या अभी? फिर मैं थोड़ा सा आऊंगा डिपॉजिट पे, ठीक है। यस सर। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी तक? वाउचर पोस्टिंग कंपाइलेशन और ये वाउचर हेड का वाउचर पोस्टिंग, हेड के पोस्टिंग्स का मंथली अकाउंट का, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ डिपॉजिट। अब बताइए डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट का कैसे होता है, कुछ बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। प्रशांत जी, Yes, can sir. we have a short tea break, sir? Yes sir, we can. Around 10-15 minutes. So Yes, it is 11:30 around. Then we will meet again at 11:45. yes sir, that's fine, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes sir.